everyone. Good morning. Hi, good morning. Good Dipti. morning. The girl in blue. Good morning, Blue everyone. zaruri hai. Morning, ma'am. Oh, Morning. good morning, ma'am. Morning, ma'am. Very good morning. Good morning. ma'am. Very good morning. Good morning to everyone. So today we'll conclude our magic book and restart fresh on a Monday. कल से हम नया शुरू करेंगे और so विजय जी आज नॉर्दर्न लाइट्स में बैठ के हमारे लिए पढ़ेंगे बहुत ठंडी जगह से. No, I'll read the second book, I think. You're reading the second book. So first Ruchika is reading. Ruchika, you're there on the call. No, Rachna, who is reading? Ma'am, she's here only. She's on the She's call. there on the call. ठीक है. Okay, who is reading? If I have to read, I can read. Tell us Psyche you're reading. Sir, Ruchika is available. Ruchika is available. Ruchika is reading. She had not written anything group, so we were wondering if she has seen the message or remembers because ये slots बहुत पहले I think एक महीना पहले भर जाते हैं reading के, so पता नहीं कई बार याद रहता है किसी को कई बार नहीं रहता है, so just wondering if Ruchika remembers. So yeah, let's start with the concluding part of the magic book, The Universe and You. So Ruchika, yeah, you're there on the call. Yes, ma'am. Good morning, ma'am. Good morning, everyone. Can you hear my voice? Yeah, ma'am? absolutely. But speak a little louder, please. Okay, ma'am. Okay. The universal and you. There is a level that you can reach with the gratitude that casts unlimited abundance in your life. The way that level of gratitude is reached is through your relationship with the universal, or if you prefer, spirit or God. You can tend to think the universal and separate from you. And when you think, if it look up above yourself and downs the sky, while the universal most cretin is above you, it is also below. It is also below you and behind you, beside you, and it is within every single thing, every single person. That means universal is within you, has above, as below, as above, has above, so below. With this knowledge along, you may work miracle. The Emerald tablet. When you understand the universal is within you, by very nature it is for you. Wanting to have more life, more healthy, more love, more beauty, and more of everything you want, then you will feel genius gratitude to universal for everything you receive in your life. And you will have emblazed the personal relationship between you and the universal. The more genius gratitude feel towns the universal for everything you receive, the closer your relationship. Chika, you can try and read again. It is the more genuine gratitude. Okay, ma'am. The more genuine gratitude you feel towns the universal for everything you receive, the closer your relationship becomes with the universal, and that is when you can reach the level of unlimited abundance from the magic of gratitude. You will have opened the heart and mind completely to the magic of gratitude, and if you will touch the life of everyone you come into the contract with, you will become a friend of universal. You will become a channel of unlimited blessings on earth. When you will get close and personally with the universal, when you feel that closeness of the universe within you, from that moment on the world will belong to you, and there will be nothing that you cannot be, have, or do. Yeah. So in this topic, the topic is called the universe in you. That means that अपने universe means subconscious mind जो हमारे अंदर है, क्योंकि subconscious mind super consciousness से connected रहता है. So this whole book and the journey of gratitude, इससे हमको ये पता लगेगा कि हमारे पास कितनी ज़्यादा powers हैं. And this is what it says that we will be connected to ourselves. मतलब हर चीज़ हम बाहर से सीख करते हैं. Especially हम Indians को बहुत ज़्यादा आदत होती है. You know, like कोई भी ऐसी चीज़ करना
even if it is like, you know, while I have all respect for all the vrat and upwas that people do, but अपने आप को टॉर्चर करके किसी भी तरीके से कुछ भी करके करना, या ये सोचना कि मेरे कहीं जाने से, किसी श्राइन पे जाने से मेरी विश पूरी हो जाएगी, see all those things, it's okay that हम हमारा विश्वास है और हम ये करते हैं, बट सबसे वो सब प्लेसिबो इफेक्ट की तरह ही काम करती हैं, बिकॉज अंदर से जो हमारे भगवान एक्टिवेट होते हैं, द यूनिवर्स इज विद इन अस एंड वी हैव द पावर, वी हैव द कैपेबिलिटी टू टर्न अराउंड कोई भी सिचुएशन किसी भी डायरेक्शन में हम स्टीयर कर सकते हैं। तो जैसे एमरल्ड टैबलेट जो है, जो शिलाजीत है, बहुत साल पहले ये जमीन के अंदर से मिली थी, ठीक है, उस पे ये लिखा हुआ था एज बिलो सो अबव एंड एज अबव सो बिलो। चाहे आप ऊपर देखो वहां भगवान है, नीचे आप देख रहे हो वहां भगवान है, ठीक है। तो इस तरह से कहीं पे भी आगे या पीछे गॉड इज ऑलवेज, इसमें जो ये वाली लाइन है जो मैंने हाईलाइट भी की हुई है, द यूनिवर्स, ठीक है, हम नॉर्मली जब भी भगवान का नाम लेते हैं तो हम ऊपर की तरफ देखते हैं और ऊपर थैंक यू बोलते हैं, बट उतने ही भगवान हमारे नीचे हैं, हमारे बिहाइंड है, पीछे हैं, हमारे साथ में है और हर एक इंडिविजुअल में है। दैट मीन्स द यूनिवर्स इज विद इन यू। ओके, सो हमारी लाइफ के अंदर मतलब वी हैव दैट कैपेबिलिटी, उस भगवान के फोर्सेस, मतलब जो जिस तरह से हम सोचते हैं कि भगवान कुछ भी पॉसिबल कर सकते हैं, है ना, वो सेम पावर्स हमारे अंदर है। दैट इज व्हाट रोंडा बर्न इज ट्राइंग टू से, दैट अपने आप को कभी डिसएम्पावर्ड मत समझना। इट इज दैट यू नो दैट गॉड इनसाइड अस, वो डॉक्टर जोसेफ बर्कली की बुक में हमने पढ़ा था कि इज लाइफ वर्ड। लाइफ वर्ड मतलब इट ऑलवेज, वो हमेशा हमको बहुत अच्छी सेहत, बहुत अच्छा, बहुत सारा प्यार, बहुत सारी सुंदरता, बहुत सारा पैसा, बहुत सारी इज्जत, बहुत सारी शोहरत, ठीक है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज, सब कुछ हमको देना चाहते हैं। लेकिन उस भगवान तक पहुंचने का एक रास्ता होता है ना, वो शुक्राना होता है। अगर आप शुक्राने में रहोगे, चाहे कितनी भी बुरी सिचुएशन है, अगर थैंक यू बोल दिया, वाइनिंग नहीं करनी है। वाइनिंग का मतलब होता है अपना दुखड़ा रोते रहना, ठीक है, उसको वाइनिंग बोलते हैं। तो अगर वाइनिंग करते रहेंगे पूरे टाइम, तो फिर हमारा वो डोर हमारे अंदर का कभी नहीं खुलेगा जहां पे वी एंटर दैट वर्ल्ड ऑफ हेवन। ओके, सो दैट इज व्हाट इट इज। अगर हमें अपने अंदर के भगवान तक पहुंचना है, अगर भगवान के रिसोर्सेज को टैप करके हमें अपनी जिंदगी में लेना है, तो उसके लिए हमको शुक्राने में रहना बहुत जरूरी है। चाहे सिचुएशन कितनी भी टफ है, चाहे कितना भी बड़ा दुख आया है, ठीक है, उसका जरूर कुछ ना कुछ बहुत बड़ा रीजन होता है, और वो भी हमको आगे पता लग जाता है। क्योंकि ऐसे हो नहीं सकता कि भगवान हमारी कुछ करना चाहे, जो मैं आपको कल एस्ट्रोलॉजी के बारे में बता रही थी। ऐसे नहीं हो सकता कि यू नो लाइक बार बार कर्स करते रहना, ये जो आदत है, मेरा जुपिटर वीक है और मेरा शनि की महादशा चल रही है और मेरा ये हो रहा है और मेरा यू नो मतलब कुछ और, मेरा गुरु बहुत तेज है, मेरा वो कमजोर है, मेरा सन उसमें आया हुआ है किसी और उसमें हॉरोस्कोप के उसमें। डोंट डू ऑल दैट। व्हाई विल द यूनिवर्स वांट टू गिव अस एनीथिंग बैड? वो तो हमारे कार्मिक पैटर्न्स के कारण शायद ऐसा ऐसा हुआ है कि जिसको इस तरह से पढ़ रहे हैं। बट इट इज ऑलवेज बेटर टू काइंड ऑफ रियली अप्रिशिएट, और जैसे हम ग्रेटिट्यूड में रहते हैं वैसे हमका माइंडसेट चेंज हो जाता है। और जैसे माइंडसेट बुद्धिस्ट उसमें लिखा हुआ है, तो लोटस सूत्रा जो लिखी थी गौतम बुद्धा ने, उन्होंने उसमें लिखा था कि जैसे एक सिंगल सेकेंड में अगर आप अपना माइंडसेट चेंज करते हो, तो आप लाइफ टाइम्स आफ्टर लाइफ टाइम्स के कर्मा, जिनके कारण अभी आपके ग्रह शायद अच्छे नहीं चल रहे हैं, वो आप टोटली ट्रांसफॉर्म कर सकते हो एक सेकेंड के माइंडसेट चेंज करने की वजह से। सो दिस इज द पावर ऑफ द माइंड, द पावर ऑफ द थॉट्स, पावर ऑफ द माइंड, द इनविजिबल फोर्स ऑफ द माइंड। ये सब किताबें हैं जो बहुत बड़े बड़े लोगों ने लिखी हुई हैं, ठीक है। इन सब का क्रक्स यही है कि अपने अंदर की पावर को एक्टिवेट करो, और वो एक्टिवेट या स्विच ऑन करने का मतलब है शुक्राने में रहो, चाहे कैसी भी सिचुएशन है, कितनी भी टफ है, कितनी भी कैसी है, दैट इज व्हाट इट इज, ठीक है। सो अब वो पर्सनल रिलेशनशिप अगर अंदर से अपने सबकॉन्शियस माइंड के साथ हमारी स्टैब्लिश हो गई, तो दुनिया की कोई ताकत हमको किसी भी सिचुएशन में हरा नहीं सकती है। तो इसमें लिखा हुआ है द मोस्ट जेन्युइन ग्रैटिट्यूड, जब जब दिल ही शुक्राना हो जाता है, जब सबकॉन्शियस माइंड का पैटर्न शुक्राना हो जाता है, सो अपने आप वी कैन सी दैट देयर इज नथिंग दैट वी कैन नॉट बी, डू एंड हैव इन आवर लाइफ, ठीक है। सो दैट इज व्हाट इट इज। कोई भी चीज ऐसी नहीं है, सो हर चीज का जवाब होता है ग्रैटिट्यूड। सो ये हम पढ़ते हैं। हाँ जी। Gratitude is the answer. Gratitude is the cue
broken or difficult to relationship of the lack of health or money and आराम आराम से पढ़ो, एक एक शब्द को ध्यान से देख के, है ना। ग्रेटिट्यूड इज द क्योर फॉर ब्रोकन। जितना स्क्रीन पे दिख रहा है उतना ही पढ़ो, है ना। बीच में से वर्ड्स मत आप ऐड करो या हटाओ मत। आराम से पढ़ो, धीरे धीरे। आप बहुत अच्छा पढ़ रहे हो, पढ़ो आप दोबारा से। Gratitude is the cure for broken or difficult relationship. For lack of health or money and unhappiness, gratitude eliminates fear, worry, guilt, and depression, and bring happiness, clarity, patience, kindness, compassion, understanding, and peace of mind. Gratitude brings solution to the problem and opportunity and whether with to be realized your dreams. Gratitude is the behind every success and it opens the door to new ideas and discover has the great scientist Newton Einstein proved it. Imagine if you every scientist follow in their footsteps, the world would be proliferated into the new territories of understanding growth and the advancement currently limits would be broken and life algorithm discover would be made into technology, physical medicine, psychology, astronomy, and every scientific field. Ingratitude become moderated subject in the school. We would see generation of children who would advance to citizenization through specific accomplishments and discover obliterating disagreements, ending war, and bringing peace to the world. The nature who will lead the world into the future are ones who leaders and the people are most grateful. The gratitude of the nature people would cast their countries and travel and become rich, would cause illnesses and disease to discredible, drop businesses and production of stimulate and the happiness of peace to survive the nature poverty would be disappear. There would not be single person in the hungry because a grateful nature could never end or allowed it is to exist. The more people who discover gratitude magical power, the faster it will be survive the world and cause the gratitude revolution. Yeah, so in this topic, gratitude is the answer. We say that कितनी भी बड़ी मुश्किल अगर हमारे साथ चल रही हो, अगर हमने उस वक्त करेज ले लिया थैंक यू बोलने का, तो हमारी वो बेस्ट हमको सोल्यूशन मिलेगा। जैसे इसमें लिखा हुआ है कि अगर ग्रैटिट्यूड हमारे साथ में रहे तो कितनी भी ब्रोकन रिलेशनशिप हो, डिफिकल्ट रिलेशनशिप हो, है ना, रिश्तों के चक्कर में ऑलमोस्ट सभी लोग स्ट्रगल कर रहे हैं। मतलब कुछ ना कुछ रिलेशनशिप्स ऐसे हैं जिनके कारण मेडिकल इशू, मेडिकल प्रॉब्लम सारी मेटाफिजिकल होती है। मेडिकल प्रॉब्लम्स सिर्फ खाने पीने से, एनवायरमेंटल रीजन से नहीं होती है। दैट मीन्स ओवर थिंकिंग, अ लॉट ऑफ वरी, अ लॉट ऑफ स्ट्रेस, उन सब से होती है। तो इसलिए लिखा हुआ है कि अगर कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम हो रिलेशनशिप्स में या कुछ भी, उसमें हेल्थ के चक्कर में हो, मनी में हो, कुछ भी हो, यू नो लाइक ग्रैटिट्यूड उसका जवाब होता है। क्योंकि अगर वो सवाल है तो ग्रैटिट्यूड उसका जवाब होता है, उससे सब कुछ आयन आउट हो जाता है धीरे धीरे। ठीक है, इट्स जस्ट दैट विदाउट कंप्लेनिंग हमको डेप्थ में करना होता है थैंक यू, स्पेशली उन चीजों के लिए जो कल हमने पढ़ा था ना, कि अगर कुछ कुछ एरियाज में अगर हेल्थ के मामले में अगर गड़बड़ चल रहा है तो कौन कौन सी हमको प्रैक्टिसेस करने की जरूरत है। अगर मनी के मामले में चल रहा है तो कौन कौन से मनी के मामले में कौन सी वाली प्रैक्टिसेस है वो हमको करनी जरूरी है। वो परसों प्रिया ने बताई होंगी सारी, इसमें पूरी लिस्ट बना के दी हुई है। रॉन्डा ने हमारी लाइफ इतनी ईजी कर दी है। ठीक है, सो ग्रैटिट्यूड से हमारे अंदर के डर,
हमारे अंदर की वरीज जो होती हैं, अगर डिप्रेशन वाली फीलिंग होती है, वो सब आयन आउट धीरे धीरे होने लग जाता है। तो इस तरह से यू कैन से दैट अगर जिंदगी में बहुत आगे जाना है सारे एरियाज में, आई नेवर से दैट सिर्फ पैसे के लिए या करियर के लिए या हेल्थ के लिए, हमको हर चीज में करने की जरूरत है, यू नो, बिकॉज वो कॉमन पाइप होता है जिसमें से पानी निकलता है हमारी जिंदगी का। वो पानी मतलब जिंदगी, मतलब टैप में से वो पानी निकल रहा है, वो हमारी लाइफ है, ठीक है। और वो एक पीछे से एक पाइप में से, टनल में से वो होके गुजर के पानी बाहर निकल रहा है जो हम वॉल्व खोल रहे हैं। सो वो टैप खोलने का मतलब है आपने बहुत ज्यादा ग्रैटिट्यूड किया, तो अब जिंदगी बहुत अच्छे तरीके से फ्लो होके आती है। और वो कॉमन टनल है, चाहे वो रिलेशनशिप का प्रॉब्लम हो, चाहे वो हेल्थ का हो, चाहे वो कोई भी हो, वो सब उसी टनल में से होके आ रहा है। और उसी टनल में से हमको सारे ब्लॉक्स हटाने होते हैं। हम सबकी जिंदगी में अलग अलग डिविजन है ऑफ द अमाउंट ऑफ ब्लॉक्स जो अंदर उस पाइप में है, ठीक है। किसी का हेल्थ का ज्यादा है, किसी का मनी का ज्यादा है, किसी का शायद रिलेशनशिप का बहुत ज्यादा है। तो इस तरह सब ने अपने अपने ब्लॉक्स हमने खुद ही बनाए हैं ना, हमने खुद उसमें डाले हुए, और उसको हमको हटाना है, धीरे धीरे उसकी सफाइयां करनी है। और उनको करने का तरीका सिर्फ शुक्राना होता है। तो उसके इट सेज ग्रैटिट्यूड इज बिहाइंड एवरी सक्सेस, और ये दरवाजा खोलता है जिंदगी को फ्री फ्लो में आने का। और इसमें लिखा हुआ है कि जैसे अगर साइंटिस्ट, स्टूडेंट्स, यू नो, जो भी अगर ग्रैटिट्यूड को अपनाते हैं तो इस जिंदगी में अमेजिंग एक्सपेरिमेंट्स होंगे, साइंटिफिक डिस्कवरीज होंगी, जिनकी वजह से लाइफ बहुत इजी हो जाएगी। तो हर चीज पहले थॉट में आती है, उसके बाद वो थिंग बनती है ना। जैसे राइट ब्रदर्स थे जिन्होंने एरोप्लेन बनाए थे सबसे पहले, आप उन्होंने यही सोचा ना, पहले उनके थॉट में ही तो आया कि कोई ऐसी चीज हो सकती है जो हवा में चलेगी और जो इस तरह से। तो राइट ब्रदर्स ने जो एक छोटा सा इनका एक थॉट आया दिमाग में, उसको उन्होंने किस तरह से ट्रांसलेट करके उसको हकीकत में बनाया। तो इसी तरह थॉट्स में हमारी पहली चीजें आती हैं और वो थिंग्स में कन्वर्ट हो जाती है। सो वी कॉल इट थॉट्स बिकम थिंग्स, है ना। सो और अगर ग्रैटिट्यूड वाले थॉट्स होते हैं किसी भी चीज के लिए, एडवांस में अगर आप थैंक यू बोल देते हो, एडवांस में अगर आपने थैंक यू बोल दिया, थैंक यू सो मच यूनिवर्स दैट सो एंड सो थिंग हैपेंड, यू नो, एज इफ वो ऑलरेडी हो चुकी है। जैसे अगर आपको जो भी घर खरीदना है तो thank you, universe, for giving me my beautiful new dream house, and I'm so happy to have it now. मैं बहुत खुश हूँ कि मेरी जिंदगी में मेरा इतना सुंदर घर आया, सपनों का घर आया, ठीक है। अभी आया नहीं है, लेकिन आप बार बार ऐसे करते जा रहे हो that thank you universe that मेरे सपनों का घर मेरी जिंदगी में आ गया है, ठीक है। चॉइस ही नहीं होती यूनिवर्स के पास कि आपको ना दे, क्योंकि इतना सारे शुक्राने की एनर्जी, मतलब वही जो मैंने बताया था ना, इमिसिबल लिक्विड होता है। सो उसमें आप मिसिबल इमिसिबल लिक्विड्स जिस तरह से, तो आप शुक्राना अपनी जिंदगी के हर चीज में, स्पेशली जो आपके सपने हैं या जो चैलेंजेस चल रहे हैं, ठीक है, हेल्थ का चैलेंज चल रहा है, हेल्थ में डिसॉल्व कर दो शुक्राने को। That thank you for my perfect health, thank you for my beautiful legs, thank you for my eyes, thank you for my hair, thank you for my vision, thank you for my eyebrows, thank you for my beautiful skin, thank you to my liver, thank you to my kidneys, thank you to my respiratory system, thank you मेरे digestive system के लिए, thank you to my blood, thank you to my immune cells, thank you to my legs, thank you to my bones and muscles, thank you for my fingers, thank you to my joints, thank you to my shoulders, thank you to my beautiful strong back, thank you for my neck, thank you for all my hormones. And then अगर आप इस तरह से रहते हो, वो एनर्जी जाके आपकी बॉडी के अंदर पेनिट्रेट हो जाती है, और फिर ब्यूटीफुल डोर आपकी जिंदगी में खुलेगा जिसमें आप उस तरह की एनर्जी को बहुत अच्छे से, जिन जिन लोगों को हार्मोन्स की प्रॉब्लम चल रही है, ठीक है, खूब हार्मोन्स के लेकर, हार्मोन्स का होता है जिनको थायराइड है, जिनको सारे गायनी रिलेटेड इश्यूज होते हैं, या फिर यू नो जिनको बहुत जल्दी स्ट्रेस हो जाता है, वो सब हार्मोन रिलेटेड होते हैं, जिनको डायबिटीज है। तो इस तरह से अपन हम सबको हार्मोन्स ही तो केमिकल मैसेंजर्स होते हैं ना हमारी बॉडी में, जो हमारी बॉडी को चला रहे होते हैं। तो खूब सारा हार्मोन्स को थैंक यू बोलो, अपने आप बॉडी के सिस्टम्स आयन आउट हो जाएंगे। अपनी इम्यूनिटी को थैंक यू बोलना हमारा बनता है। इम्यूनिटी होता है कि जो हमको बीमार, मतलब बहुत हेल्दी रखता है। कोई भी अगर बीमारी, कोई जीवाणु, कीटाणु, जर्म्स, बैक्टीरिया, वायरस अगर हमारे अंदर कोई आते भी हैं, तो हमारे इम्यून सेल्स उनसे फाइट करके हमारी बॉडी को हेल्दी रखते हैं। तो हम अपने इम्यून सेल्स को थैंक यू बोलेंगे। तो इस तरह ग्रैटिट्यूड इज द आंसर फॉर एवरी सिचुएशन
इन लाइफ, जो भी हमारे साथ चल रहा है। और इसमें जैसे लिखा हुआ है ना, लाइफ ऑल्टरिंग डिस्कवरीज, तो हमारे साथ एक्सपीरियंसेस लाइफ ऑल्टरिंग होने लग जाएंगे, विच विल बी टू गुड टू बी रियल एंड विल बी लाइक अमेज्ड। ठीक है, तो इसमें स्कूल में लिखा हुआ है कि अगर स्कूल में ग्रैटिट्यूड मैंडेटरी सब्जेक्ट हो गया तो हम देखेंगे लोगों, मतलब पूरी सिविलाइजेशन चेंज हो जाएगी किस तरह से, और मतलब इतना पीस हो जाएगा, इतनी यूनिटी हो जाएगी, क्योंकि इन बच्चों के दिमाग में रहेगा ग्रैटिट्यूड, है ना। जैसे हमारे शाम की जो सेशंस होते हैं, अब उन बच्चों की थॉट प्रोसेस इतनी डिफरेंट हो गई है कि उनके एक्सपीरियंसेस हमसे कहीं ज्यादा होते हैं। मैंने मीना की बेटी का, तो मीना की बेटी को मैंने, जब मैं मिली थी एक बारी, तो मैंने उनको वो दी थी ग्रैटिट्यूड बुक, हमें लाइक ग्रैटिट्यूड जर्नल दिया था, छोटी सी है वो, बिल्कुल 6 साल की। सो ग्रैटिट्यूड जर्नल वो पूरा खत्म करके उन्होंने अभी भिजवाया था, और मैं मीना से मिली थी अभी रिसेंटली। तो मैंने वो देखा कि किस लेवल ऑफ, वो उस छोटे बच्चे ने ना किस तरह से ग्रैटिट्यूड लिखा। ऑफ कोर्स रोज लिखा था अपनी दादी के लिए और अपने पापा के लिए, एंड ईना ही नाम लेके लिखा, थैंक यू टू ईना। ठीक है, सो जो आई डोंट नो मासी है कि ताई पता नहीं, क्योंकि ईना मीना दोनों ट्विंस हैं, तो कौन पहले जिंदगी दुनिया में आया था ये मुझे पता नहीं है, बट वो मतलब उस नाम से, thank you to the door, thank you to the flower, thank you to my so and so teacher, thank you to my school principal, thank you to the flower, thank you to the window, thank you to the hot water, thank you to the sun। और इतनी छोटी छोटी चीजों के लिए मैं पढ़ रही थी उसकी ग्रैटिट्यूड डायरी, इट वाज सो अमेजिंग। ऐसी ऐसी जगहों पे जहाँ पे हमारी नजर ही नहीं जाती है एज एडल्ट्स, उस बच्चे ने इतने अच्छे से लिखा हुआ था। और पूरा वो 2024 का वो बबल बनाया हुआ कि बीच में लिखा हुआ था माय गोल फॉर 2024, और उसको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ था, लाइक स्टडीज, ट्रैवल, इस तरह से, हेल्थ, और उसमें फिर फर्दर लाइक वो ब्रांचेस बनाई हुई थी। मतलब इट वाज सो ब्यूटिफुली पिक्टोग्राफिक, मुझे देख के मजा आ गया कि बच्चे किस लिमिट तक सोच सकते हैं, है ना। इतना डेप्थ, अगर इस तरह के बच्चे हमारे ग्रो अप होंगे तो हमें लगता है कि वो जिंदगी में कभी भी हार पाएंगे? नेवर। इनफैक्ट दे विल एक्सिलरेट, दे विल लाइक उनको उस हिसाब से अपॉर्चुनिटीज मिलती जाएंगी, एंड लाइफ विल बी टोटली ट्रांसफॉर्मेशनल। सो दिस इज द काइंड ऑफ वर्ल्ड जो हम चाहते हैं हम क्रिएट करें, है ना। सो दिस इज व्हाट इट इज। इसमें लिखा हुआ है द ग्रैटिट्यूड ऑफ अ नेशंस पीपल, अगर कंट्री के सारे लोग अगर शुक्राने में रहने लग जाएंगे तो वो कंट्री कितनी थ्राइव करेगी, उसकी इकोनॉमी बढ़ जाएगी, उसमें इलनेसेस एंड डिजीज इतने ज्यादा मतलब ड्रास्टिकली ड्रॉप, बिजनेस बढ़ जाएंगे, हैप्पीनेस पूरी दुनिया में फैल जाएगा। ठीक है, एंड दैट इज व्हाट इट इज। सो पूरी दुनिया में अगर ये वाला वर्ड है ग्रैटिट्यूड रेवोल्यूशन, मतलब शुक्राने की क्रांति लेके आनी है पूरी दुनिया में। एंड आई होप हम जैसे बहुत सारे लोग सुबह सुबह उठ के ग्रैटिट्यूड पढ़ते हैं, ठीक है, और ये सीखने की कोशिश कर रहे हैं कि किस लेवल तक हम अपना ग्रैटिट्यूड को ले जा सकते हैं, एंड देन लाइफ विल बी सो ब्यूटीफुल। सो दैट इज व्हाट इट इज। तो हम अपनी लाइफ में पहले ग्रैटिट्यूड रेवोल्यूशन लेके आएंगे, फिर औरों की जिंदगी में, है ना। हाँ जी रुचिका। Take the magic with you. Take gratitude with you wherever you go. Saturate the magic gratitude into your passion, encounter action and life situation to make all your dreams come true. In the future, if you present with you challenging situations that you think you have no control over, and you will at a loss as the what you do. Instead of worry or fear, turn to the magic of gratitude and be grateful for everything else in your life. When you deliberating thanks the goodness in your life, the circumstance around the challenging situation will magically change. We showed him I.E.man the way, whether being grateful, ungrateful, rest on his way. Say the Koranai, say the कुरान, magic. कुरान जो इस्लामिक सीक्रेट टेक्स्ट होता है। Quran
say the magic word thank you. Say them out loud, shout them from the rooftop, whisper them to yourself. Say them in your mind or feel them in your heart. But wherever you go from the day forward, take gratitude. It is magical power with you. To have the magical life filled with abundance and happiness, the answer is on your lips. It is inside your heart, and it is ready and waiting for you to bring 14 the magic. Rhonda Byrne. Okay. So thank you, Ruchika, for reading. We conclude this book now. मतलब ये किताब हमारी खत्म हो गई, and thank you, Ruchika. So this is the last इनका जो हमको ये मैसेज देख रही हैं, आखिरी हमको दे रही हैं रॉन्डा बर्न. टेक द मैजिक विथ यू वेरेवर यू गो. सो अगर आप पार्क में घूमने जा रहे हो, वहां अपने साथ मैजिक ऑफ ग्रैटिट्यूड लेके जाओ. अगर आप ट्रेन से सफर कर रहे हो, वहां पे मैजिक ऑफ ग्रैटिट्यूड लेके जाओ. अगर आप खाना बना रहे हो, वहां मैजिक ऑफ ग्रैटिट्यूड लेके जाओ. अगर आप ऑफिस जा रहे हो, वहां मैजिक ऑफ ग्रैटिट्यूड लेके जाओ. अगर आप किसी क्लाइंट से मिलने जा रहे हो, वहां मैजिक ऑफ ग्रैटिट्यूड लेके जाओ. अगर आप सो रहे हो, उसमें भी मैजिक ऑफ ग्रैटिट्यूड के साथ सो. अगर आप सो के उठ रहे हो, उसमें भी मैजिक ऑफ ग्रैटिट्यूड के साथ उठो. अगर आप वेकेशन के लिए गए हो, वहां पे भी मैजिक ऑफ ग्रैटिट्यूड के साथ जाओ. ठीक है. सो दिस इज व्हाट इट इज. अगर आप नॉर्मल मॉर्निंग वॉक के लिए जा रहे हो, वहां पे भी मैजिक ऑफ ग्रैटिट्यूड. अगर आप फ्रेंड्स के साथ डिनर पे जा रहे हो, तब भी मैजिक ऑफ ग्रैटिट्यूड. अगर आप अपनी फैमिली के साथ घर में बैठे हो, एंजॉय कर रहे हो, क्वाइट इवनिंग में भी जस्ट वॉचिंग टीवी टुगेदर और व्हाटएवर, मैजिक ऑफ ग्रैटिट्यूड अपने साथ रखो. बिकॉज मैजिक ऑफ ग्रैटिट्यूड तो पोर्टेबल है ना. और इसी तरह जब ग्रैटिट्यूड साथ रहेगा तो मैजिक्स एंड मिरेकल्स तो होने बनते हैं, क्योंकि मैजिक ग्रैटिट्यूड के साथ ही चलता है. अगर आपने किसी चीज के लिए थैंक यू बोल दिया, तो आपकी जिंदगी में जादू होने शुरू हो जाएंगे. एंड वी हैव टू गेट यूज्ड टू इट. ओके. सो जादू को जिंदगी में लाने का मतलब यही है. अभी जादू की डेफिनेशन हमने सीखी थी ना मैजिक की टेलीसाई की किताब में, दैट जब अनएक्सपेक्टेड चीज कोई हमारे साथ टू गुड टू बी रियल, जिसका कोई रीजन नहीं है, अगर वो हो जाती है, उसको हम जादू बोलते हैं. ठीक है. लेकिन अगर ग्रैटिट्यूड है तो जादू है. जादू और ग्रैटिट्यूड एक ही चीज होता है. ठीक है. और जितना बड़ा ग्रैटिट्यूड, जितना ज्यादा ग्रैटिट्यूड, उतने बड़े बड़े जादू. सो दैट इज व्हाट इट इज. इसीलिए अब से जो इनका लास्ट मैसेज हमको है इस किताब में, उसमें यही है दैट मैजिक ऑफ ग्रैटिट्यूड को आप सैचुरेट कर दो अपने हर पैशन में. जो काम पसंद है उसके लिए थैंक यू बोलना शुरू कर दो. हर इंसान से मिले हो, चाहे आपको वो पसंद हो या ना पसंद हो, आप उनके लिए हर एनकाउंटर के लिए, एनकाउंटर गुड हो सकता है, एनकाउंटर बैड हो सकता है, एनकाउंटर वेरी बैड भी हो सकता है. ठीक है. लेकिन उसके लिए थैंक यू बोलना. हर एक्शन के लिए जो आप करते हो उसके लिए, या कोई और करता है उसके लिए थैंक यू बोलना. ठीक है. और हर लाइफ सिचुएशन जो आती है, अच्छी बुरी बहुत बुरी, उनके लिए थैंक यू बोलना. सो इस तरह रॉन्डा बर्न ने कहा है कि कभी कभी लाइफ में आगे जाके ऐसी सिचुएशन आएगी जिसपे आपको लगता है कि आपका कोई कंट्रोल ही नहीं है, वो आउट ऑफ कंट्रोल होती जा रही है, और आपको समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या करें क्या नहीं है. डॉक्टर को दिखाएं, ये करें वो करें, रिश्ता टूट रहा है, वकील के पास जाएं, डिवोर्स ले लें, ये कर लें. ये सारी चीजें होती रहेंगी जिंदगी में. तो अगर ऐसी कोई सिचुएशन आपकी किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में समझ में नहीं आ रहा है कि आगे नेक्स्ट कदम क्या रखना चाहिए, और आप बहुत ज्यादा लो जोन में डिप कर रहे हो, ऐसे में आप उस सिचुएशन को छोड़ दो और किसी बाकी की चीजों के लिए जो है उनके लिए थैंक यू बोलना शुरू कर दो. है ना. जैसे अगर रिलेशनशिप में बहुत बड़ी टर्मोइल आई है और आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं अगला कदम क्या लूं, और आपको बहुत दुख है, आपको बैठे बैठे रोना आ रहा है. ठीक है. तो उस वक्त आप एयर के लिए थैंक यू करो. आपके पास लाइफ है, जिंदा हो, उसके लिए थैंक यू करो. आपके पास एक बेड है सोने के लिए, आप उसके लिए थैंक यू करो. तो उस सिचुएशन रिलेशनशिप के बारे में हम उसमें बिल्कुल नहीं सोचेंगे, बिकॉज रिलेशनशिप में हमको थैंक यू नहीं किया जाएगा उस वक्त. है ना. बिकॉज लाइफ में बहुत लोएस्ट एब में जब आप होते हो, तो आपको उस पर्टिकुलर चीज के लिए थैंक यू नहीं किया जाता है. इट विल बी हार्ड. सो इंस्टेड बाकी की जो चीजें हैं आपके पास, कि घर में किचन है, बाथरूम है, पानी है, सांस के लिए हवा है. ठीक है. सनलाइट है, सुबह सुबह आप रोज देखते हो. आपके पास सोने के लिए घर है, आपके पास जो यूटेंसिल्स हैं घर में. तो बाकी की चीजों के लिए थैंक यू बोलना शुरू कर दो. अपने आप इस सिचुएशन के अंधेरे में रोशनी आने लग जाएगी. रोशनी सन का एक ही सोर्स होता है ना.
तो वो वहीं से रोशनी आएगी। तो बस शुक्राने से रोशनी आती है। किस चीज के लिए आप शुक्राना कर रहे हो, कोई बात नहीं, कभी कभी अगर उस पर्टिकुलर चीज के लिए नहीं किया जाता, जैसे हेल्थ में बहुत ब्रेकडाउन चल रहा है, छोड़ दो हेल्थ को, हेल्थ के लिए नहीं करेंगे फिर हम, है ना। अगर सोच के बहुत ज्यादा दुख हो रहा है, बार बार दिमाग वहीं जा रहा है कि हेल्थ में ये प्रॉब्लम चल रही है, डॉक्टर ने ऐसे बोला, ऐसी रिपोर्ट आई है, ये प्रॉब्लम चल रही है, ये प्रॉब्लम चल रही है, मत सोचो उस बारे में, बाकी चीजों के बारे में सोचो। ठीक है, मनी के बारे में सोचो कि आपके पास इतने पैसे हैं कि आपको 2 वक्त का खाना मिल जाता है, आपके पास इतने पैसे हैं कि आप कपड़े पहन सकते हो, आपके पास इतने पैसे हैं कि आप बिजली का बिल दे सकते हो। उन सब चीजों के लिए थैंक यू बोलना शुरू कर दो, हवा के लिए, पानी के लिए, इस तरह से। और अपना दिमाग उस चीज से हटा लो जिसको सोच सोच के बहुत ज्यादा दुख हो रहा है। तो यही इन्होंने बताया हुआ है कि आगे कभी ऐसा होगा तो टर्न टू द मैजिक ऑफ ग्रेटिट्यूड एंड बी ग्रेटफुल फॉर एवरीथिंग एल्स इन योर लाइफ। उस चीज के बारे में मत सोचो क्योंकि उधर रेजिस्टेंस आ रहा है बहुत ज्यादा। इसीलिए किसी के साथ कोई भी प्रेसिंग प्रॉब्लम अगर लाइफ में होती है, ठीक है, तो ऐसे में इट इज ऑलवेज बेटर दैट बिकॉज उस चीज के बारे में ही सोचते रहोगे, इसका मतलब है ये हो क्यों नहीं रहा है, ये हो क्यों नहीं रहा है, ये हो क्यों नहीं रहा है, ये वाला एटीट्यूड हो जाता है। ऑब्वियसली हो ही जाएगा ना, क्योंकि दिन रात सुबह शाम आप एक ही चीज के बारे में सोच रहे हो। तो जब ऐसी वाली सिचुएशन होती है तो जस्ट लीव दैट थिंग फॉर अ वाइल, है ना। रेजिस्टेंस को ब्रेक करने का तरीका यही होता है कि आप बाकी की चीजों की तरफ अपना फोकस और अटेंशन ले जाओ एंड स्टार्ट बीइंग ग्रेटफुल फॉर एवरीथिंग एल्स इन योर लाइफ। सो इस तरह से अपने आप, इसमें लिखा हुआ है ना, द सर्कमस्टांसेस अराउंड द चैलेंजिंग सिचुएशन विल मैजिकली चेंज। क्योंकि ग्रेटिट्यूड है मतलब मैजिक होने वाला है। इट्स अ मैजिक ऑफ ग्रेटिट्यूड। ओके, ऑलवेज रिमेंबर इट। सो ग्रेटिट्यूड किया है मतलब जादू होने वाला है उस सिचुएशन में या जिस भी सिचुएशन में। तो कुरान का ये कोट है जो लिखा हुआ है कि हमने इंसान को रास्ता दिखाया, अब वो ग्रेटफुल होता है या अनग्रेटफुल होता है ये उसकी मर्जी है। हमने रास्ता दिखा दिया कि इस रास्ते पे चल के ऐसा होगा और उस रास्ते पे चल के वैसा होगा। अब इंसान की मर्जी वो किस पे चले, हमारा काम बस यही था कि हम उसको रास्ता दिखाएं, है ना। और ये मेरा फेवरेट पैराग्राफ है इस किताब का। से द मैजिक वर्ड्स थैंक यू, से देम आउट लाउड, मतलब जोर से बोलो, शाउट करो अपने छत पे खड़े होके, अपने कानों के अंदर फुसफुसाओ, अपने माइंड में बोलो, अपने दिल में उसको फील करो। और आज के बाद से जहां पे भी जाओ, टेक द ग्रेटिट्यूड और उसकी जादुई शक्तियां अपने साथ में रखो। तो जादुई शक्तियां एक वर्ड में छिपी है, थैंक यू। तो जैसे ही आपने किसी सिचुएशन के लिए थैंक यू बोला, वो जादुई शक्तियां अपने अंदर इन्वाइट हो जाती है। दैट इज व्हाट इट इज। तो इसीलिए लिखा हुआ है रॉन्डा बर्न ने आखिर में, दैट खूब भरपूर यूज करो, बिकॉज ये जादू आपको एज अ पावर यूनिवर्स ने गिफ्ट में दिया हुआ है। ठीक है, तो इसलिए कोई भी सवाल हो जिंदगी का, उसका जवाब आपके लिप्स पे है, आपके दिल में है। इट इज रेडी एंड इट इज वेटिंग फॉर यू टू ब्रिंग फॉर द मैजिक। और ये यूनिवर्स मैजिक आपको देना चाहता है, लेके खड़ा हुआ सिल्वर प्लेटर पे, आपको थैंक यू बोलना है और उसको लेना है ना। दैट इज व्हाट इट इज। So thank you to Rhonda Byrne for giving us such amazing books and like showing us the pathway of leading our life. So by this we conclude this book. हम कल से इसको afresh दोबारा शुरू करेंगे अपनी fresh determination के साथ में। और let's just go to the other book, Telepsychic, जो विजय जी from Northern Lights Europe हमारे लिए पढ़ेंगे। Become So this a is- straight line thinker. It is absolutely essential that you get this straight, that harmony, beauty, love, peace, joy, and all the blessings of life come from the one source. God cannot do anything unloving, for God is boundless love. God cannot wish pain, for God is absolute peace. God cannot wish sorrow, or God is absolute joy. God cannot wish death, for God is life, and that is your life now. All so-called curses, sorcery, black magic, satanism, etc. come from the frightfully ignorant belief in a suppositional opposite force. This is only one power, one God, not 2, 3, or 1,000, just one. To believe in an evil power to change
God is based entirely on the rank superstition. When men use the one power constructively, harmoniously, peacefully, and joyously, they call it God. When men use the power ignorantly, negatively, and foolishly, they call it Satan, the devil, evil spirit, etc. Curses returned home to roost. 1 सेकेंड विजय जी, ये वाला हम थोड़ा सा, ये छोटा सा बस पैराग्राफ है, इसमें बस यही चीज बताई हुई है। स्पेशली आई थिंक हम हिंदुस्तानियों को ये समझना बहुत जरूरी है कि भगवान एक ही होते हैं। देर इज नो वन पावर, वन गॉड, नॉट 2, 3 और 1000। देर इज ओनली वन गॉड एंड वन पावर। उस पावर को हम गॉड बोलते हैं और वो गॉड हमारे अंदर ही है। ठीक है, पहली ये चीज बस समझनी है। एंड देन इट सेज दैट वो फोर्स को हम पॉजिटिवली यूज कर सकते हैं या नेगेटिवली यूज कर सकते हैं। जैसे हमने पढ़ा था, जैसे पानी से जल भी सकते हैं और पानी से आप बहुत अच्छे से अपनी प्यास भी बुझा सकते हो। पानी तो सेम है ना, तो पानी अच्छा या बुरा क्या हो गया। सो इस तरह से वो जो फोर्स है हमारे अंदर, जैसे अगर मेरे अंदर का भगवान है तो मैं उसको पॉजिटिवली भी यूज कर सकती हूँ, मैं उस भगवान को नेगेटिवली भी यूज कर सकती हूँ। वो जो फोर्स है मेरे अंदर, है ना। अगर किसी पे ब्लैक मैजिक या इविल करना, इसका मतलब है वो फोर्स, कल हमने पढ़ा था ना दैट जिन जिन लोगों ने लोगों के ऊपर जादू टोना टोटका ये सब किया है, या मन में उनके लिए जेलसी वाली फीलिंग्स हैं या कर्सेस दिए हैं किसी और को क्योंकि वो बहुत ज्यादा खुश है और आपको उस तरह की खुशी नहीं मिल रही है और आप उनकी खुशी में नहीं सहमत हो कि आप ऑपोजिट उनको वाइब्स दे रहे हो, वो हमारी जिंदगी को रूइन कर देगा, खत्म कर देगा टोटली। मतलब कल तो हमने देखा था उनकी डेथ ही हो गई, मतलब, और वो भी इतनी बुरी तरीके से। सो दैट इज वॉट इट इज। इसलिए कभी भी वो फीलिंग्स नहीं लाना अपने अंदर, उस एनर्जी को टार्निश मत होने देना। जो भगवान की जो जादू की शक्ति हमारे अंदर है, हमें उसको कभी भी वरी, जेलसी, एंगर, फियर उन सब से स्टेन नहीं करना है उसमें, बिकॉज उसका रेपरकशन बहुत खराब होता है। तो इसमें यही बताया हुआ है that it is just one God and that God is the force of bringing the utmost happiness, best of health, best of relationship, best of opportunities, best of travels, magics and miracles. So that God is the source of all of that. God हमको कभी भी नेगेटिव कुछ करना नहीं चाहते, और जो ह्यूमन बीइंग्स अपने अंदर से नेगेटिव पावर को ओरिजिनेट करेंगे या एग्ज्यूट करेंगे, उनके साथ वो पावर वापस उनके पास घूम के आएगी। ठीक है, अगले की जिंदगी में तो वो पावर धीरे धीरे कम हो ही जाएगी। ठीक है, बट ये हमारे ऊपर है ना, जो हमको बताया है दैट हमेशा ये फर्म करो, रोज सुबह सुबह आंख बंद करके अपने आप बोल दो कि थैंक यू यूनिवर्स, मुझे हमेशा एक सर्कल ऑफ लव और सर्कल ऑफ प्रोटेक्शन से सराउंड करने के लिए, एंड आई लेट एवरीबडी फ्री। ओके, बस इतना आपको करना है और धीरे धीरे हमारा सबकॉन्शियस माइंड उस बात को विश्वास करने लगता है कि आप हमेशा एक बबल ऑफ प्रोटेक्शन में रहते हो। आपको कोई नेगेटिव विजन, नेगेटिव थॉट किसी के छू भी नहीं सकते, बिकॉज यू आर ऑलवेज इन दैट सर्कल ऑफ प्रोटेक्शन। ठीक है, दैट इज व्हाट इट इज। हाँ जी। Yes. Curses return home to roost. When you turn to the living spirit, Almighty within you, and open your mind and heart and daily affirm God is, and his presence flows through me as harmony, beauty, love, peace, joy, and abundance. God watches over me, and I am always surrounded by the sacred circle of God's love. When you give complete allegiance, loyalty, and confidence to the one power within you, you are called Israel in the Bible, and the Bible says, surely there is no enchantment against Jacob, neither is there any divination against Israel. Number 23.23. A man who recognizes the supremacy of the spirit and the power of his own thought will find that all his ways are pleasantness
and all his path are peace. ये बहुत ब्यूटीफुल है, इसको गांठ बांध लो सब लोग। और आई थिंक पूनम आप इसमें डाल देना ग्रुप में भी, ये वाली एफर्मेशन सुबह और रात को जोर से बोल के, ठीक है, पढ़ लो Sure, ma'am. 4 से 5 बार, विच इज गॉड एंड हिज प्रेजेंस, मतलब भगवान और भगवान का प्रेजेंस मेरी जिंदगी में फ्लो करता है इन द फॉर्म ऑफ हार्मनी, ब्यूटी, लव, पीस, जॉय एंड अबंडेंस। इसमें हम हेल्थ भी ऐड कर देते हैं, ठीक है, बिकॉज हमको बहुत अच्छी हेल्थ भी चाहिए। गॉड वॉचेस ओवर मी, भगवान मतलब पूरे टाइम मुझे देखते रहते हैं, एंड आई एम ऑलवेज सराउंडेड बाय द सीक्रेट सर्कल ऑफ गॉड्स लव, ठीक है। सो बस यही है मेरी जिंदगी, मीन्स हार्मनी, ब्यूटी, लव, पीस, जॉय, अबंडेंस। भगवान का हाथ हमेशा मेरे सिर पर है और मैं हमेशा भगवान के प्यार से उनके सर्कल ऑफ लव में मैं सराउंडेड हूँ। ये हम सब गांठ बांध देते हैं, हमारी जिंदगी का ये मूल मंत्र है। अगर हमने इसको गांठ बांध ली, अगर हमको ये मेमोराइज हो गया, रोज पढ़ पढ़ के सुबह और शाम, ठीक है, ये 4 से 5 बार अपने आप को, इसको कहीं पर्ची पे लिख के, या आपने अगर इसकी फोटो खींच के आप अपनी गैलरी में रख लीजिए, वहां से पढ़ते रहिए। शुरू के 1 हफ्ते आपको देख के पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद ये हमारी मेमोरी में डाउनलोड हो जाएगा, है ना, बिकॉज 5-6 दिन लगते हैं हमको इतना छोटी एफर्मेशन को मेमोराइज करने में अच्छे से। और उसके बाद आप देखना आपकी जिंदगी किस मुकाम पे पहुंचती है, रास्ता ही बदल जाएगा, रास्ते अपने आप क्रिएट होंगे आपके लिए, ठीक है। अगर आप भटकोगे ना तो सामने रास्ता एक खुल जाएगा इस तरह से, एंड लाइफ सॉर्टेड होगी। और डॉक्टर जोसेफ मर्फी ने यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि अगर आप अपने अंदर के सबकॉन्शियस माइंड को, जो सुपर पावर है ना, अगर अंदर के सबकॉन्शियस माइंड के साथ इस लॉयल्टी और कॉन्फिडेंस के साथ ये वाला सेंटेंस लगातार दोहराते रहते हो बार बार अपने आप को, देन यू विल बिकम, यू विल हैव दैट पावर ऑफ द जीसस। जैसे बाइबल का इन्होंने कोट दिया है जिसमें लिखा हुआ है कि कोई हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता, हम इतने पावरफुल इंसान हो जाएंगे, रादर दैट वी बिकम दैट सोर्स ऑफ गिविंग टू पीपल, ठीक है। सो दैट इज व्हाट इट मीन्स। सो पॉइंट्स टू रिमेंबर हम करते हैं। Points to remember. Number 1, the greatest secret of the ages is the realization that God is one and invisible, the only presence and power, cause and substance. The enlightenment of man gives all power, allegiance, and loyalty to the supreme cause, spirit, and not to created things. You give no power to any man, stick, stone, condition, sun, moon, or stars. You give power only to the Creator. Number 2, when we were children, we thought in images and mental pictures. Consequently, the childish mind projected images of God as an old man with a beard sitting on a throne and angels with harps playing music. Childish mind pictured a devil with hoops and thorns and horns, with a tail that could sting, all of which were thought images created in our own minds based on the superstitious suggestion of adults. तो इसमें ये इन 2 पॉइंट्स का पहले उसका मतलब है कि देयर इज कोई फोर्स हमारी जिंदगी के बाहर का नहीं है जिसको हम बोल सकते हैं कि वो क्रिएटर है, वो गॉड है। वो सारे फोर्स हमारे अंदर के, ठीक है, जिसके बारे में हम ऑलरेडी बहुत ज्यादा डिस्कस कर चुके हैं। तो इसीलिए इसमें लिखा हुआ है, आई थिंक वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस, दैट कोई पावर नहीं होती किसी मैन में, मतलब जिनको हम प्रीस्ट समझते हैं, जैसे है ना, प्रीस्ट जो समझते हैं, तो जैसे मैं भी तो एक इंसान ही हूं ना, मतलब वहीं से तो निकल के आए ना हम लोग। सो इट सेज किसी आदमी में इतनी पावर नहीं है कि आप उसके पास जाओ और उसको बोलो कि प्लीज मेरी जिंदगी बदल दो, मेरी जिंदगी में ये प्रॉब्लम हो रही है। किसी आदमी के पास हो, आपसे ज्यादा पावर नहीं है। यू हैव ऑल द पावर्स फॉर योर ओन लाइफ। किसी स्टिक में वो पावर नहीं है, स्टिक इन्होंने लिखा है क्योंकि शायद मैजिक वॉन्ड या जादू से ऐसे ऐसे कुछ करते हैं, पता नहीं, जो भी। सो जो हमको लगता है कि ऐसे से कुछ मैजिक वॉन्ड जैसा कोई बहुत बड़ा संत महात्मा इंसान कर देगा और हमारी सारी प्रॉब्लम्स चली जाएंगी, ठीक है, वो सब प्लेसिबो इफेक्ट उसको बोलते हैं।
सो इसीलिए उन्होंने लिखा है कोई मैन, कोई स्टिक, कोई स्टोन, किसी स्टोन में वो पावर नहीं है। हमारे मैजिक स्टोन में है, क्योंकि उसमें भी हमने ही पावर दी हुई है, जनरेट कर दी है, क्योंकि हम हमेशा उसको पकड़ के बहुत सारा थैंक यू बोलते हैं। किसी कंडीशन में पावर नहीं है, सन मून स्टार्स में भी नहीं है। जितनी पावर हमारे अंदर है, ये डॉक्टर जोसेफ मर्फी बहुत क्लियरली लिख रहे हैं। सो यू गिव पावर ओनली टू द क्रिएटर, यू गिव दैट पावर टू द क्रिएटर, ओके, एंड द क्रिएटर इज यू, वन विद इन, दैट इज व्हाट। और बच्चों का लिखा हुआ है कि बच्चों को ये सुपरस्टिशंस में कभी मत डालो कि ये व्रत करने से, वो व्रत करने से। मैंने इतने सारे लोग अपने जिंदगी में अपने वर्क प्लेस पे या नेबरहुड में या फ्रेंड सर्कल में देखे हैं जो हफ्ते में 2-3 व्रत उपवास करते हैं, ठीक है। और वो व्रत उपवास करने की वजह से मुझे उनकी लाइफ में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं नजर आ रहा इतने सालों में। मतलब आई एम सीइंग द सिचुएशन डिटीरियोरेट, द काइंड ऑफ पर्सन दे आर, आई मीन लाइक और ज्यादा उनकी जिंदगी में सफरिंग आ गई है पहले से ज्यादा। सो विच मीन्स ऐसी चीजों को पावर आप करो, वैसे वैसे भी डिटॉक्स करना चाहिए, है ना, बहुत अच्छी बात है, व्रत करो, सिर्फ पानी पियो 1-8 दिन, बिकॉज डाइजेस्टिव सिस्टम को रेस्ट मिलेगा, वो सब। But yeah, I mean, like fasting to that extent that, and then doing nothing about the thoughts. Okay, so that is not something which is right ना। Gratitude, एक shred of gratitude भी नहीं है, लेकिन 4 दिन खाना ही नहीं खाना, उसका कोई फायदा नहीं होना चाहिए ना। दोनों करो या तो फिर बहुत अच्छी बात है। Fasting is good for the body and for the soul, definitely. It brings you closer to God because like detoxed body एक बहुत क्लीन बॉडी होती है, और साफ बॉडी में भगवान की पावर को एक्टिवेट करना इजी होता है ना, क्योंकि जिस तरह का आजकल हम खाना वाना खाते हैं। सो बट देन उस पर्पस के लिए करना ताकि मेरी जिंदगी ऐसी हो जाए, मेरी जिंदगी वैसी हो जाए, ताकि मेरे पास पैसा आ जाए, मेरी हेल्थ अच्छी हो जाए, इसलिए इस वजह से करना, मतलब ब्राइब जो है ना, जैसे भगवान के साथ लगातार ट्रेडिंग चल रही होती है। मैं चादर चढ़ा दूं तो मेरी जिंदगी में ये हो जाएगा, मैं मन्नत मांग लूं तो फिर मेरी जिंदगी में वो हो जाएगा। मतलब बिजनेस में भगवान को भी नहीं छोड़ा है, ठीक है, उनको भी मतलब पहले से ही कि मैं ये चढ़ा के जा रही हूँ, देखो मैं इतने रुपए का चढ़ावा कर रही हूँ तो मेरी ये वाली विश फुलफिल करनी है। इट डज नॉट वर्क। या मेरी ये कर दो, फिर मैं आके इतना, ये मेरी विश फुलफिल हो गई तो मैं इतने लोगों को खाना खिलाऊंगी, ये मेरी विश फुलफिल हो गई तो मैं ऐसे कर दूंगी, मैंने वो मांगा, वो मेरी विश फुलफिल हो गई, तो मतलब व्हाट इज दैट काइंड ऑफ बिजनेस। बिजनेस आप बिजनेस अपने प्रोस्पेरिटी के लिए करो, बिजनेस भगवान से करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। वो एटीट्यूड, वो माइंडसेट चेंज करने की बहुत जरूरत है। सो दैट इज व्हाट इट इज। सो द भगवान इज यू, दैट्स वेरी वेरी क्लियर। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम। Yeah. Number और ना 3. बच्चों में ये मत डालो प्लीज, और ऑल दीज थिंग्स द लिटिल किड्स बेचारे, मतलब वो ऐसी ऐसी सुपरस्टिशियस बातें करते हैं। डोंट, प्लीज डोंट डू दैट। Yes. Number 3, primitive man attributed pleasure to the god and pain and suffering to evil powers. He supplicated the intelligences of the winds, the stars, and the waters, hoping they would hear him and answer. A belief in two powers, God and evil, is a throwback to this age-old superstitious beliefs. Number 4, the forces of nature are not evil. It depends upon how you use them. You can use electricity to vacuum the floor or electrocute someone. Good and evil are in man's motivation and his thought life. तो ये पॉइंट नंबर 3 भी यही है। जैसे प्रिमिटिव, हम तो अभी भी प्रिमिटिव चीजों में ही फंसे हुए हैं ना, अभी भी तो हम ऐसे ही करते हैं। अभी भी हमें जब शादी होती है, 2 लोग प्यार करते हैं बहुत ज्यादा, तो उनकी शादी के पहले अभी भी तो हम हॉरोस्कोप लेके पंडितों के पास भागते हैं। उन पंडितों की जिंदगी देखना कितनी खुशनुमा है, ठीक है, आपको खुद ही पता लग जाएगा। अगर इतना ज्यादा मतलब पावर होती तो फिर उनकी भी जिंदगी वैसी नहीं होती ना। सो इट इज नॉट लाइक दैट। वही उन्होंने लिखा हुआ है डॉक्टर जोसेफ मर्फी ने पहले ही पैराग्राफ में, पहला ही जो पॉइंट है, किसी इंसान के पास पावर नहीं है कि वो आपकी जिंदगी का फ्यूचर बता पाए, किसी के पास ये पावर नहीं है, ठीक है। सिर्फ आप अपनी जिंदगी का फ्यूचर बता सकते हो अकॉर्डिंग टू व्हाट यू वांटेड टू बी, एंड दैट इज हाउ ब्यूटीफुल द थिंग इज। लेकिन हमें अपनी पावर ना, अपने आप को पावरलेस करके रखते हैं, लोगों के पास घूमते रहते हैं कि ये कर दो, वो बता दो, ये टोना कर दो, उसकी वजह से ये हो जाएगा,
21 दिन अगर मैं जाके जल चढ़ाती हूँ, जल चढ़ाओ, मतलब बहुत बहुत बढ़िया बात है कि आप पेड़ पौधों में जाके पानी डाल रहे हो, लाइक मदर अर्थ और वाटर को बहुत अच्छे से, और उस पानी से ही नरिश हो रहा है, बट इसलिए बिकॉज अगेन ट्रेडिंग चल रही है, कुछ कुछ बिजनेस चल रहा है उसके साथ, कि मुझे 21 दिन इसलिए करना है, ये सब सुपरस्टिशंस होते हैं, दकियानूसी बेकार की बातें होती है, इनसे कुछ नहीं होता। आप कुछ भी करके देख लो, वापस घूम के इंसान वहीं आएगा, क्योंकि उसके थॉट्स उसके क्रिएटर्स होते हैं और थॉट्स भगवान होते हैं। ठीक है, दैट इज व्हाट ही इज ट्राइंग टू टेल अस। और फोर्सेस ऑफ नेचर जो है वो जैसे बताया हुआ है कि कभी भी गुड एंड इविल नहीं होते। जैसे आप कभी नहीं बोल सकते मेरा सूरज स्ट्रांग है और मेरा जुपिटर स्ट्रांग है और मेरा ये बुध बहुत कम है और मेरा मंगल खराब चल रहा है और पता नहीं क्या क्या। देयर यूनिवर्स की कोई भी कंपोनेंट या पार्ट हमारे लिए नेगेटिव नहीं हो सकता। ये सारे दिमाग में गंद घुसी हुई है ना, उसके कारण से वो चीजें वैसी नजर आती हैं। ठीक है, तो उन चीजों को अपने आप को क्लीन रखो, अपनी पावर, वो जो एफर्मेशन पढ़ी है ना उसको 50 बार पढ़ो, अगर ये नीचे नहीं, मतलब नहीं निकल रही अगर ये चीजें दिमाग से। ठीक है, इट डजंट वर्क। यस, एवरी डे से थैंक यू। मैं भी तो आज मैं गई अपने इस होटल रूम से बाहर गई, बालकनी में मैंने सुबह सुबह जब मैं सो के उठी, मैंने बहुत अच्छे से सन एंड मून एंड स्टार्स और स्काई को, एयर को, सबको, 5 एलिमेंट्स को, प्लैनेट्स को, सबको बहुत दिल से थैंक यू बोला। ठीक है, थैंक यू बोला, ट्रेडिंग नहीं की कि मेरे लिए ऐसे कर दो, मेरे लिए वैसे कर दो, ऐसे भिखारियों की तरह लाइन से जैसे खड़े हो जाते हैं, ये भी दे दो, वो भी दे दो, वो भी दे दो। दिमाग उसमें लगाओ कि आपको देना क्या है किसी को, व्हाट यू हैव टू गिव, डोंट थिंक अबाउट व्हाट यू वांट। ओके, व्हाट यू वांट टू गिव। जैसे आपका माइंडसेट अगर ये हो जाता है व्हाट आई वांट टू गिव, व्हाट आई कैन जनरेट फ्रॉम माय लाइफ, जिससे लोगों के चेहरे पे स्माइल आए, जैसे उनकी लाइफ बहुत सुंदर हो, अपने आप क्यों लग जाएगी उन सारी चीजों की जो आपको चाहिए। मतलब उसके लिए कोई मेहनत, कोई कहीं नहीं जाना पड़ेगा। ठीक है, वो सिल्वर प्लेटर में हमारी जिंदगी के अंदर आ जाएगी। दैट इज व्हाट इट इज। So use that forces and that mind and those thoughts and frequency, उस तरीके से that you make this world a better place to live in। अपने यूनिक तरीके से आप क्या चीज कर पा रहे हो जिसमें आप सेल्फलेसली लोगों की जिंदगी में इम्पैक्ट ला रहे हो। सेल्फ किसी भी तरह हो सकता है। ठीक है, अगेन आप मन से कर सकते हो, ब्लेसिंग करके कर सकते हो इस तरीके से। सो विच इज सो ब्यूटिफुल, बिकॉज हमारा ह्यूमन माइंड में जो थॉट है वो अगले के लाइफ में पेनिट्रेट होने का केपेबल है, जो भी। तो अगर हमने अपने ह्यूमन माइंड से, मैंने ये सोचा कि इस जिंदगी की, इस रिक्शे वाले की, या वो जो इंसान सड़क पे है, या ये जो स्टोर कीपर है, जो दुकानदार है, उसकी जिंदगी में इतनी बरकत आए, इतनी प्रोस्पेरिटी आए, that he becomes like nice person with wisdom who is enjoying the prosperity। तो अब मैं तो उस इंसान को जानती नहीं हूं ना, लेकिन मैंने अपनी जिंदगी को यूज किया है उसको देने के लिए कुछ ना कुछ, तो मैंने बहुत पावरफुल उसकी ब्लेसिंग्स दे दी है ना। एंड दैट इज हाउ इट इज। सो दिस इज व्हाट इट इज। तो वही सब अच्छी बुरी चीजें, ये सब हमारे दिमाग में फंसी हुई हैं, इनका कोई तथ्य नहीं होता है। हाँ जी। Number 5, once you admit that there is any power outside yourself, however beneficial you may conceive it to be, you have sown the seed which must sooner or later bear the fruit of fear, which is the entire ruin of life, love, and liberty. Number 6, the voodoo or witch doctor, which has no power, but when he wishes to impose a curse or a death prayer on an unsophisticated native, he lets the native know that he is cursed, and he, believing in his power, succumbs to the suggestion, which becomes a movement of his own thought. The same curse imposed on missionaries are ridiculed by them, for they realize that evil curses have no power. There is nothing in their subconscious that accepts the negative suggestions of the witch doctor. There must be 100 spirit or feeling in your subconscious mind before you can accept evil suggestions. How far you would get suggesting failure to a man who is full of confidence and faith in success.
he would laugh at you. या तो इसमें पॉइंट नंबर 5 में एक तो ये दिया हुआ है कि बहुत ज्यादा सुपरस्टिशियस अगर हो जाते हैं हम किसी चीजों को लेके कि इस बार मैंने एक्चुअली 2 दिन से जल नहीं चढ़ाया इसलिए मेरी जिंदगी में प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो गई। इन चीजों से बहुत ज्यादा फियर बढ़ता रहता है। अगर ऐसा नहीं किया तो ये हो जाएगा मेरे साथ, अगर मैंने करवा चौथ का फास्ट नहीं किया तो कुछ गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, दिस इज हाउ वी थिंक, है ना। सो इन सब चीजों से फियर ही तो हो रहा है। अगर आपका कभी करवा चौथ पे आपने कुछ पी लिया, मतलब हमको बताया हुआ है, मतलब कुछ ऐसी चीज यू हैड जो नॉर्मली नहीं फास्ट में लेते हैं, जैसे आपने जूस पी लिया, ठीक है। अब आपने आज तक में भी 15 सालों से कभी करवा चौथ के फास्ट वाले दिन जूस नहीं पिया था। अब यहाँ पे जितने भी हस्बैंड्स है ना, वो इस बात को सपोर्ट करते हैं कि अगर हम नहीं करेंगे तो उसकी वजह से, मतलब फियर फैक्टर ही तो है हमारे अंदर, हम क्यों करते हैं, फियर से ही तो करते हैं। और क्या रीजन है, मतलब आई ऑल्सो डू इट, बट देन इसका ये मतलब वो नहीं होना चाहिए कि अगर कुछ गड़बड़ की या कुछ तरीके से अगर थोड़ा सा रूल के हिसाब से अगर आपने 1% इधर उधर आप ट्रैक पे चले गए या आपने कभी तबीयत खराब हो रही है, लोग प्रेगनेंसी में करवा चौथ का फास्ट करते हैं, ठीक है। तबीयत खराब हो रही है, ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, लो बीपी का इशू है, उसमें फास्ट करना मतलब बॉडी को छोड़ के आप ऐसी चीज में वो कर रहे हो। ऑफ कोर्स पूजा जरूरी है, मून के लिए हम अर्घ देते हैं, मतलब जल चढ़ाते हैं, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। बट इस तरीके से फियर फैक्टर के साथ रहना कि अगर मैंने ऐसा नहीं किया ना इसलिए मेरी जिंदगी में ऐसा हो रहा है, या इस तरह से ये फियर बढ़ता ही जाएगा, इसका कोई एंड ही नहीं है। क्योंकि ये दलदल की तरह होती है ये सारे सुपरस्टिशंस, है ना। तो जितने ज्यादा हम इसमें जाते हैं ना उतना हम फंसते जाते हैं। दैट इज वॉट इट इज। तो यहाँ पे पूरे अच्छे से इसमें भी वुडू डॉक्टर या जो भी कोई जो झाड़ फूक करने वाले लोग, झाड़ फूक करने वाले हम इंडिया में बोलेंगे इनको, अगर हमें लगता है कि उनको हमने पावर दे दी, ठीक है, दैट मीन्स दैट इट इज नॉट ऑफ एनी यूज, बिकॉज हम अपनी पावर जो हमारे अंदर है किसी भी सिचुएशन को ट्रांसफॉर्म करने की, क्रिएट करने की, गॉड की जो क्रिएटर पावर है वो हम किसी और को दे ही नहीं सकते। इट विल नेवर वर्क। हम कोशिश कर सकते हैं। I've seen people shelling out money to give to some पंडित or someone for like weird strange things उनकी जिंदगी बदलने के लिए। It doesn't work like that। सब कुछ एनर्जी का खेल है इस दुनिया में। जिस दिन अगर हम ये वाली बात समझ गए ना उस दिन सब सॉर्टेड है। और अपने सबकॉन्शियस से आपकी सेल्फ टॉक क्या हो रही है, बिकॉज सबकॉन्शियस माइंड के पास वो वाला दिमाग नहीं होता कि सही है गलत है, झूठ बोल रही है सच बोल रही है। सबकॉन्शियस माइंड आपके कमांड्स लेता है, और कमांड्स वो लेता है जो कमांड आप दे रहे हो। आई एम रिच एंड प्रॉस्परस, मनी इज कॉन्स्टेंटली पोरिंग इनटू माय लाइफ, आई एम एबल, एवरीथिंग इज ऑलवेज वर्किंग आउट फॉर मी फॉर द हाईएस्ट गुड। Okay, my life is a celebration. My vocation is my vacation. I enjoy every day of my life. My every day of my life is full of magics and miracles. अगर आपकी इस तरह की सेल्फ टॉक रहती है, इस तरह की कमांड्स अगर आप दे रहे हो अपने सबकॉन्शियस माइंड को, वो विश्वास करना शुरू कर देता है और आपकी जिंदगी में वो चेंज आ जाता है। आप तो नहीं गए किसी पंडित के पास ना, लेकिन आपने अपने अंदर की पावर को एक्टिवेट कर रखा है, अपने आप को इस तरह की बातें करके, सेल्फ टॉक, ऑटो सजेशन, रेपिटेशंस, इस तरह से। एंड सबकॉन्शियस माइंड ऑलवेज सेज तथास्तु, एंड दैट्स हाउ लाइफ इज। सो दैट इज व्हाट इट सेज। Yes. हाँ जी। Number 7. It is foolish to give power to others when they tell you they are praying against you. The best procedure is to laugh at them, for they have none of the power they can think they have. The power is of God, and it is the great affirmative. It is the all-wise one, the mighty God, the Father of all. It moves as harmony. Nothing can oppose it, thwart it, or vitiate it. It is omnipotent. Join up with it, and when your thoughts are God's thought, God's power is with your thoughts of good. The negative thoughts of others have no power to reach you if you refuse to accept them, and they will return to their point of origin with double force. Number 8. Yeah.
हाँ 1 सेकेंड। सो ये वाला जो 7 पॉइंट है बड़ा सा, इसमें ये लिखा हुआ है कि किसी के पास पावर नहीं है कि आपकी जिंदगी में वो इन्फ्लुएंस लाए जब तक आप अलाउ नहीं करो। तो हम नहीं अलाउ करेंगे वो वाली आज वाली एफर्मेशन बोल बोल के, ठीक है, रिपीटेटिवली बोलेंगे, बिकॉज सबकॉन्शियस माइंड में उसको हमें हैमर इन करना है। एंड वंस वी हैमर दैट इन अ सबकॉन्शियस माइंड, देयर इज नो फोर्स आउटसाइड ऑफ आवर लाइफ दैट इज गोइंग टू हार्म अस। सिंपल। या Number 8, when God's love unites the wife and the husband, no person can break it up. God is love. When someone says that he is going to break up a marriage, bless him and walk on. Give power to God, no one else. Number 9, hatred, resentment, jealousy, and hostility kill love, peace, harmony, beauty, joy, and discernment. To continue generating negative emotion is highly destructive and can end in fatal disease, acute mental aberrations, or insanity. Number 10, Moses taught the oneness of the spiritual power. The Egyptian priest believed in many gods and evil powers. Moses knew the power was one and sacred. The negative thoughts like chaff in the wind. Number 11, become a straight line thinker and give all power, recognition, and loyalty to the one supreme power, the living spirit almighty within you. Align yourself with it and let this presence flow through you as harmony, health, peace, joy, and love. You will find that all your ways are pleasantness, while all your paths are peace. Yeah, thank you so much, Vijay ji, for Thank reading you. so Thank you. beautifully. So by Thank you. this we come to the end of this chapter. तो इसमें ध्यान रखना है, हमें गार्डेड रहना है, ठीक है, हेट्रेड से, रिजेंटमेंट से, जेलसी से, हॉस्टिलिटी, किसी और के लिए नेगेटिव फीलिंग्स जो होती हैं, बिकॉज उसकी वजह से लव, पीस, हार्मनी, ब्यूटी, जॉय, डिसर्नमेंट हमारी जिंदगी का हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। सो हमको अपने आप को हमेशा ग्रैटिट्यूड, लव एंड अप्रिसिएशन में रखना है, ठीक है, और अपनी पावर को जाने रखना है। दैट इज व्हाट। सो इट सेज अगर नेगेटिव इमोशंस अगर हमारी जिंदगी में आ गए, ये सारे जो हैं, हेट्रेड, रिजेंटमेंट, जेलसी, हॉस्टिलिटी, तो ये बहुत हाईली डिस्ट्रक्टिव होता है हमारे लाइफ के लिए, और इनकी वजह से फेटल डिजीज होती है, मेंटल प्रॉब्लम्स होती है, इंसानिटी तक, इंसान पागल भी हो सकता है, ठीक है, इतनी पावर होती है इन सब नेगेटिव इमोशंस में। इनसे हमको दूर ही रहना है, ठीक है। और फिर उसके बाद मोजेस का जो हमने ऊपर भी पावर पढ़ी थी, सो ये उन्होंने लिखा हुआ था दैट इजिप्शियन प्रीस्ट बिलीव्ड इन मेनी गॉड्स एंड इविल पावर्स, दिस नथिंग लाइक दैट। सब हमारे दिमाग की उपज है। सो इंस्टेड हमको करना क्या है, become a straight line thinker and give all power, recognition and loyalty अपने अंदर के भगवान की तरफ रखो। अगर आप किसी और चीज से लॉयल हो गए, ठीक है, तो आपने, इसका मतलब आप अपने आप से डिसलॉयल हो, ऑब्वियसली, है ना। अगर आप किसी रिचुअल के साथ फंस गए हो, किसी रिचुअल में फंस गए हो, ठीक है, तो इसका मतलब है आप अंदर अपने पावर के साथ लॉयल नहीं हो ना, अपने अंदर की, क्योंकि आपने वो पावर किसी और को दे रखी है, क्योंकि किसी और ने बोला आप रोज उल्टे लटक जाओ, इसकी वजह से आपके पास छप्पर फाड़ के पैसा आने लग जाएगा, एंड यू स्टार्ट डूइंग इट, मतलब उल्टे लग जाओ, कोई भी रिचुअल हो सकता है वो, तो हम वो वाला काम करने लग जाते हैं। अब उसकी वजह से पैसा नहीं आता है, माइंडसेट की वजह से आता है, अपने अंदर आपने क्या दिमाग में गुजार रखा है, ठीक है। तो अगर आप कोई रिचुअल करने की वजह से आप सोचते हो आपके पास पैसा आ जाता है, तो प्लेसिबो इफेक्ट है, क्योंकि किसी ने बोल रखा है, तो वो एक तरह से हेट्रो सजेशन का काम करता है, तभी भी इसी तरह की पावर उसमें आती है, ठीक है। इसीलिए अपने आप को, दैट गॉड, दैट ऑलमाइटी जो हमारे अंदर है, उनके थ्रू आप हार्मनी, हेल्थ, पीस, जॉय एंड लव, जो हमने अभी एफर्मेशन ऊपर पढ़ी थी, वो बहुत पावरफुल एफर्मेशन है, उसको जोर जोर से मुंह से बोलो, आवाज के साथ उसको करना होता है। अगर आवाज के साथ रीड करने का सिचुएशन नहीं है आपके घर में या ऑफिस में, अगर आपने वो पर्ची निकाल ली है या जो भी है वो नहीं पढ़ पा रहे हो, मन में उसको पढ़ो,
पढ़ते रहो लगातार 5-6 बार, हर बार निकाल के यू विल सी दैट आप अपने आप को डिस्कवर करोगे, बिकॉज ये जो जर्नी है, ये पूरी किताब टेलीसाइकिक, ये अपने अंदर की पावर को डिस्कवर करने के लिए है। ठीक है, बहुत ब्यूटीफुल चैप्टर है ये वाला, चैप्टर नंबर 3, हाउ टू लेट टेलीसाइकिक्स वर्क्स वंडर्स फॉर यू। हम सब चाहते हैं हमारे वर्क्स वंडर्स मीन्स हमारे लाइफ में जादू और चमत्कार कैसे हम पैदा कर सकते हैं अपनी जिंदगी के अंदर से, टेलीसाइकिक की पावर को यूज करके, अपने अंदर के जो गॉड है उनको एक्टिवेट करके हम अपनी जिंदगी में मैजिक्स एंड मिरेकल्स कैसे कर सकते हैं। एंड दिस आई कैन गारंटी यू, मैंने इसी इंटेंशन के साथ ही बुक शुरू की थी, दैट बाय द टाइम ये किताब खत्म होगी हम सबकी जिंदगी में मतलब रेवोल्यूशन आ जाएगा इन टर्म्स ऑफ हम अपने आप से इतनी स्ट्रांगली कनेक्टेड हो जाएंगे दैट वील बी इन लव विद आवरसेल्व्स, we will know our power, we will know how to use that power, we will know that अगर सिचुएशन खराब हो रही है जो हमारे हिसाब से नहीं है तो हम उस पावर को अपने अंदर से एक्टिवेट कैसे कर पाएंगे। ये सारी चीजें हमको इस किताब में बहुत अच्छे से आएगी। ठीक है, अभी तक तो हम एंशिएंट टीचिंग्स का चैप्टर 2 में पढ़ रहे थे, अब हम मतलब फ्रॉम टुमारो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद हाउ वी कैन यूज दिस पावर टू एक्टिवेट दैट सुप्रीम पावर फ्रॉम विद इन। ओके, while at the same time मैजिक बुक से ग्रैटिट्यूड भी हम अपने ना नेल लेके वैसे हैमर करेंगे अपने अंदर। ठीक है, वो दोनों चीजें जब साथ साथ चलेंगी ना, सो चॉइस ही नहीं होगी कि हम कभी जिंदगी में हार पाए। इनफैक्ट वी विल रीच ग्रेट स्ट्राइड्स, वी विल हैव इनसेन अमाउंट ऑफ सक्सेस, जॉय, पीस, लव, हार्मनी, everything that we want in our life, and that is what is the beauty of these books that we are reading, both of them very powerful. थैंक यू सो मच, थैंक यू। मुझे प्रिया ने बताया कि आज से श्याम जी गाना नहीं गा पाएंगे क्योंकि उन्होंने बैडमिंटन क्लब ज्वाइन कर लिया है। तो गाना गाने का काम अलग अलग लोगों को करना पड़ेगा अब से, जो जो यहाँ पे अच्छे अच्छे सिंगर्स हैं। Anyone wants to share anything? I think there was someone who wanted to share yesterday and couldn't because of shortage of time. Yes. Ma'am, even Prabhasini wanted to share a day before. That day, na? हाँ. Me, Prabhasini. Prabhasini also, हाँ, the other Thank day. you. गुड मॉर्निंग Thank you. मैम। Thank you. नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन जो आप बच्चों के लिए उस दिन उस मैम जी को गाइड कर रहे थे, एक्चुअली वो हुआ मेरे भाभी का बेटा जो वाइजैक में पढ़ रहा है, एक हफ्ते से लगा रहा, मैंने बोल रहा था, महीने से बोल रहा था मैं नहीं रहूंगा उधर, घर चलाऊंगा, मेरे लिए दूसरा कॉलेज ढूंढिए, मुझे इधर अच्छा नहीं लग। बार बार मैंने मम्मी दूसरा पापा को, कॉलेज है। हाँ वो हाँ। वाइजैक में उस कॉलेज में नहीं रहना चाहता, वो जो जहाँ हॉस्टल में रहता है वो चला आएगा बोल के, ऐसे भी रात भर ऐसे फोन करके मम्मी को पापा को इधर उधर चारों तरफ फोन करके ऐसे परेशान करके रखा था। तो नारायण रेकी शास्त्र में एक अफर्मेशन का चार्ट है बच्चों के लिए, तो मैंने भैया भाभी को वो वाला दिया जो आप इंग्लिश में कराते हो, उसमें थोड़ा और ज्यादा थोड़ा है, वही सेम ही है, जो सिंसियर है, रेस्पॉन्सिबल है, अपनी पढ़ाई के प्रति पूर्ण तरह से समर्पित है, इसे सब है वो वाला। तो भैया और भाभी को बोला 10 बार इसको पढ़ना है, और मैं, मेरी दीदी और मेरी बड़ी दीदी की बहू, तीनों मिलके उसके लिए ग्रैटिट्यूड लिखे, वो वाला अफर्मेशन भी लिखे और उसके लिए मैग्निफिसेंट आउटकम भी लगाए एक दिन, है ना। एक दिन लिखे तो दूसरे दिन भैया मेरी मझली दीदी जो बरहमपुर में रहते दूसरे टाउन में, उनके घर में गए थे, उसको उस बेटे को भी लेके गए थे कि उसका माइंड थोड़ा चेंज हो जाएगा, थोड़ा घूम फिर के आएगा तो ठीक हो जाएगा। हम लोग इधर रात में उसके लिए प्रेयर किए थे और ये अफर्मेशन भी लिखे थे, ढेर सारा मैजिक डस्ट भी उसके ऊपर डाला था, मैग्निफिसेंट आउटकम भी किया था। सुबह भैया बोला नहीं, उसके कॉलेज में सब लोग उसका तारीफ किए, उसका रिजल्ट भी इस बार अच्छा आया है, और वो बोल रहा है आज अब उधर रह के पढ़ेगा, वो कॉलेज चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है। वाह, क्या बात है, दैट्स रियली नाइस। तो नहीं, ऐसे ही ना बहुत एफर्मेशन कर करके जिंदगी बदल जाती है।
हाँ, बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। मैं अपने बेटी के ऊपर भी वो इम्प्लीमेंट कर रही हूँ। अभी 10th का बोर्ड देगी भगवान के आशीर्वाद। नहीं नहीं बहुत अच्छा, she will always remember। उसको बोलना वो वाला affirmation करे ना, that the हाँ, divine आप power is flowing through हाँ, me, or whatever like the universe always reveals to me the right answers at the right time। हाँ, आपका ही वही अफर्मेशन उसको दे दिया है मैंने, ये करो देखो कैसे चमत्कार होता है, मैम ने बोला है। तो वो लिख रही है, इतना अच्छा आधा पैराग्राफ लिख रही है वो वाला, अच्छा। कंटिन्यू तो कर रही है। हाँ, आधा पैराग्राफ लिख रही है। मैं बोली 5 टाइम्स लिखना, मैम ने बोला है मैजिक सा है। और नहीं, तू इतना पढ़ाई करती है, उसके साथ ये ग्रैटिट्यूड और अफर्मेशन जो हमें पता है और किसी को पता नहीं है, तेरे फ्रेंड्स को किसी को पता नहीं, तू एक बार इम्प्लीमेंट करके देख कितना जादू आता है इसमें। ऐसे मैं बोली हूँ। मेरे लाइफ में तो चेंज हुआ, वो देख रही है। इसके वजह से, ग्रेटिट्यूड के वजह से बहुत सारा चेंजेस, जो मेरे में बहुत सारा ब्रेकडाउन था 2 इयर्स बिफोर था, लेकिन मैं अभी लोगों को गाइड कर पा रही हूँ इसी की वजह से ही। मेरा एक सवाल है, मैं जब किसी को बोलती हूँ हर इंसान में भगवान का ही स्वरूप होता है, जो नर में ही नारायण है, सबको ग्रेटिट्यूड देना, वी शुड लव एंड एक्सेप्ट एवरीवन एज दे आर। तो उसने बोला, तो क्रिमिनल्स को, जो रेपिस्ट वो करते हैं, उन लोगों को भी प्यार और प्यार स्वीकार करना चाहिए क्या? तो करती रहे सबको प्यार, ऐसा बोल दिया। तो मेरा मुंह चुप हो गया, मैं क्या बोलूं उस टाइम पर क्या बोलना चाहिए उसको रिप्लाई? Obviously, मतलब वो भी तो कोई किसी का बुरा कर रहा है, और किसी के एक्शन में वो होता क्या है कि मन में कोई मतलब मन में कुछ करना और रियल लाइफ में कोई एक्शन करना, बात तो एक ही होती है ना। तो दैट पर्सन हैज डन दिस काइंड ऑफ एन एक्ट, वो उसकी जिंदगी में इतनी ज्यादा सफरिंग भरी हुई है, कोई इंसान वो क्यों क्राइम करेगा? ऑब्वियसली बिकॉज उसके मतलब लाइक इतनी ज्यादा सफरिंग, उस लेवल की सफरिंग आ गई है कि वो एक इंसान बनना ही छोड़ गया, कि जो इंसानियत का जो वो होता है बेसिक रूल, दैट एटलीस्ट यू एक्ट लाइक अ ह्यूमन बीइंग। ओके, वो चीज से वो इतना दूर हो गया है। तो उन लोगों को, ऐसे लोगों को बहुत ज्यादा लव एंड सपोर्ट की जरूरत होती है, बिलीव मी। बिकॉज लाइक कोई भी नास्टी इंसान है जो बहुत इस तरह के काम करता है, दैट पर्सन नीड्स अ लॉट ऑफ लव, कंपैशन, मैजिक डस्ट ऑफ विजडम एंड हैप्पीनेस फ्रॉम आवर साइड। विजडम एंड हैप्पीनेस, ठीक है, ऑफ कोर्स करना चाहिए। ब्लेसिंग्स ऑफ लेकिन विजडम वो एंड इंसान के वजह से हैप्पीनेस। हमारा बहुत नुकसान, माने जो रेप कर देते हैं, उस इंसान को, उसकी माँ को या उस लड़की को भी बोलेंगे, यदि तुम उसको ग्रेटिट्यूड दो कि एक्सेप्ट करो, उस वो पेन में था, तो वो तो There will इंसान नहीं come कर a पाएगी ना। stage, हाँ, there will come a stage जब आपको पता है ना, राजीव गांधी को किसी ने assassinate किया था, that female हाँ, was, there was someone responsible for his assassination। So प्रियंका गांधी जो उनकी बेटी हैं, वो बहुत साल तक उनके अगेंस्ट वो एंग्स कैरी कर रही थी, और वो जो पर्सन था वो जेल में था, साउथ में ही कहीं पे। And Priyanka Gandhi, after about 20 years, went and met that person. And उनको ये था कि मुझे अपनी जिंदगी से ना ये रिलीज करना है कि उसकी वजह से मेरे फादर की जान चली गई। और वो जाके उसके साथ स्पेंड किया टाइम, और बहुत बड़ा न्यूज़पेपर आर्टिकल आया था, एंड बिकॉज शी वांटेड टू गेट आउट ऑफ इट। और उनको ये गाइडेंस मिली थी डॉक्टर दायसाको इकेदा से, जापान में। उन्होंने इनको कहा था कि गो एंड जस्ट गो एंड रिलीज दैट, वो जब तक आप अपने अंदर के उसको, कि उसने मेरे पापा को किल किया, वो वाली फैक्टर जब तक रिलीज नहीं होगा, यू हैव टू फॉरगिव एंड लेट गो एंड मूव ऑन इन योर लाइफ, नहीं तो आपकी जिंदगी बर्न होती रहेगी तब तक। सो शी वेंट टू दैट जेल, शी टुक स्पेशल परमिशन, शी स्टेड, और उससे बड़ा क्या ही एक्ट हो सकता है। एंड देन शी एक्चुअली सेड दैट आई फॉरगिव यू फॉर व्हाटएवर यू डिड। और इस तरह से वो मिल के आई, उनके साथ आधा घंटा बिता के आई। तो वो देयर कम्स अ टाइम जब आप उस लेवल पे पहुंच जाते हो जहाँ पे you just want to like just let go of that situation। आपको पता होता है आपको मूव ऑन करना है, और अपनी जिंदगी को एज अ ब्लेसिंग यूज करो, चाहे किसी ने भी हमारे लिए बहुत मतलब कुछ ऐसा काम किया हुआ होता है। और एक क्वेश्चन, है, यदि इंसान के अंदर भी भगवान है बोलते हैं, तो वो गलत काम क्यों करते हैं? ऐसे भी लोग मुझसे पूछते हैं। हाँ, तो वही तो है ना, इविल एंड गुड पावर्स होती है हमारी, जो हमें आज भी हाँ, है। इलेक्ट्रिसिटी आपके अंदर फिट करके दिया है ना, तो
उस फोर्स को ह्यूमन बीइंग्स अच्छे तरीके से यूज करते हैं कि बुरे तरीके से यूज करते हैं, ठीक है, वो फोर्स है। भगवान इज नॉट लाइक अ ह्यूमन फॉर्म जिनका मतलब कोई वो वैसे फॉर्म बॉडी होता है। इट्स नॉट लाइक दैट, इट इज अ फोर्स, इट इज अ क्रिएटिव फोर्स जो हमारे अंदर है। तो हम अगर उसी फोर्स को अपने पास प्रोग्रामिंग के कारण नेगेटिवली यूज करते हैं, तो हम अपनी जिंदगी से उस फोर्स को, जैसे इलेक्ट्रिसिटी का इन्होंने लिखा हुआ है, या तो आप किसी को करंट मार सकते हो, इलेक्ट्रोक्यूट करना मतलब बिजली लग गई और उससे उनका हार्म हो गया, ठीक है, उसके लिए भी यूज कर सकते हो। और उसी इलेक्ट्रिसिटी से, जैसे इन्होंने डॉक्टर वैक्यूम क्लीनर चला के पूरे घर की सफाइयां भी कर सकते हो। दोनों काम बिजली से हो रहे हैं, एक अच्छा एक बहुत नेगेटिव है। तो इस तरह से उस फोर्स को हम कैसे यूज करें, जैसे अगर मैं अभी आंख मूंद के बैठूं और मैं आप सबको ब्लेस करूं कि जितने भी लोग इस वक्त मुझे सुन रहे हैं, सुबह सुबह जो सुबह उठे हैं, उनकी जिंदगी में जादू चमत्कार होने लग जाए, उनकी जो इच्छाएं हैं वो सारी पूरी हो जाए, ठीक है। और उनकी जिंदगी में जैसे खुशियों की बारिश है, सेहत की बारिश है, ट्रैवल्स की बारिश है, उनका बिजनेस खूब थ्राइव करे, खूब फ्लरिश करे, उनकी जिंदगी हमेशा हंसियों से खुशियों से भर जाए, इस तरह की जिंदगी हो जाए। हर एक इंसान जो अभी मेरी बात सुन रहा है, जिसके कानों में मेरी आवाज पड़ रही है, मैं ये भी बोल सकती हूँ, है ना। और दूसरे तरीके से मैं ये भी कर सकती हूँ कि मुझे अगर अपनी सिस्टर इन लॉ पसंद नहीं है, तो मैं उनके लिए कुछ बुरा बुरा सोचूं कि देखो बिना बात के ऊपर का पैसा, इतना ज्यादा घमंड आ गया है, ऐसे करती हैं, मेरे साथ ऐसा किया, उनके पास गाड़ी की लाइनें लगती जा रही है, मेरी जिंदगी में एक घर खरीदने का मुझे स्ट्रगल हो रहा है, ये हो रहा है। तो मैंने अपने अंदर की पावर को दो तरीके से यूज किया। एक पहला वाला जिसमें मैंने ब्लेस किया, वो वाली जो एनर्जी जब मेरी जिंदगी से जाएगी, तो ऑब्वियसली मेरी मेरी जिंदगी में क्रिएशन का प्रोसेस शुरू हो जाएगा, जबकि मैंने चाहा नहीं था, मैं जेन्युइनली दिल से ब्लेस कर रही थी। और दूसरी तरफ मैंने अपनी सिस्टर इन लॉ से जेलसी किया, मैंने एक तरह से सोचा कि क्या उनके पास इतनी सारी गाड़ियों की लाइनें खड़ी हो रही हैं और मैं एक घर भी अपना अपना खुद का मैं नहीं खरीद पा रही, है ना। ऐसा इस तरह की भी सोच लोगों की होती है। पावर तो सेम है ना, आपने उसको कैसे यूज किया है। तो अंदर का भगवान है, अंदर का भगवान एक्टिवेट हो जाता है, और अंदर के भगवान को के स्विच ऑन करने के लिए हमको ग्रैटिट्यूड और लव का सहारा लेना होता है। और यही पूरी जर्नी है, यही पॉलिशिंग है कि हम अंदर के भगवान से खुद कैसे कनेक्ट हो जिंदगी के सफर में। जिंदगी का सफर यही है, ये लाइफ की जर्नी है। इसीलिए कहते हैं लाइफ इज अ जर्नी, इट इज नॉट अ डेस्टिनेशन। बिकॉज कभी वो पॉइंट नहीं आएगा कि जहां पे हम सोचे कि हाँ भाई, आई हैव अराइव्ड एंड नाउ आई एम द वाइजेस्ट पर्सन इन दिस वर्ल्ड, आई एम द मोस्ट इंटेलिजेंट पर्सन, आई एम द हेल्दीएस्ट पर्सन, आई एम द वेल्दीएस्ट पर्सन। ऐसा नहीं होता है, ठीक है। लाइफ डेस्टिनेशन तब भी चलता रहेगा, जैसे ही आपके पास उस लेवल के, आपने 2 करोड़ की कार खरीद ली, अब नेक्स्ट आपका डेस्टिनेशन होगा कि अब मैं रोल्स रॉयस कैसे ले पाऊं, ठीक है। तो इस तरह से आपकी डिमांड्स भी कभी खत्म नहीं होती है, आपकी जिंदगी में लर्निंग्स कभी खत्म नहीं होती है। देयर इज सो मच मोर टू डिस्कवर एंड अनरेवल एंड लाइक डीमिस्टिफाई सो मेनी मिस्ट्रीज इन लाइफ। और इस तरह से जर्नी चलती रहेगी, पॉलिशिंग हमारी चलती रहेगी, नेगेटिव एक्सपीरियंस आते रहेंगे, फिर हमारी उन पावर को हम ज्यादा यूज कर पाएंगे उन सिचुएशंस में जो हम पहले नेगेटिव सोचते थे। तो ये भगवान की पावर होती है। भगवान की पावर धीरे धीरे हमको अच्छा इंसान बनाती रहती है, लेकिन भगवान की पावर जो हमारे अंदर है, उनको एक्टिवेट करने के लिए हमको ग्रैटिट्यूड, प्यार, उसका सहारा लेना पड़ता है, जो रियल रीजन है हमारे इस धरती पे आने का। सो दैट इज व्हाट इट इज। सो ये जर्नी चलती रहेगी, अंदर का भगवान एक्टिव हम करते रहेंगे, द क्रिएटर, द गॉड, द फोर्स, ऑलमाइटी, जो भी हम बोले, है ना। तो भगवान तो अंदर है, लेकिन क्या हम यूज कर रहे हैं, या हमने वो पावर किसी और को दे रखी है, तो ये हमारे ऊपर होता है, ठीक है। थैंक यू मैम, थैंक यू। और एक मैजिक हुआ, इतने साल शादी का 16-17 साल बाद मेरे हस्बैंड ने कल एक बहुत बढ़िया अमिताभ बच्चन जी का एक शायरी मुझे भेजा है। मैं सोची ये क्या मेरे लिए भेजा है या कैसे? प्यार मोहब्बत वाली शायरी भेजी है आपके पति ने आपको? हाँ हाँ हाँ, पहली बार इतने सालों के बाद तो भेजा है। थोड़ा मैं समझ नहीं पाई पहली बार जो सुनी। मैं सोची मैं ग्रैटिट्यूड लिख रही हूँ उनके लिए, रोज 5-5 सेंटेंस लिख रही हूँ, शायद इसी का प्रभाव उनको ऊपर माने ऑब्वियसली इसी का प्रभाव है। गया ऐसे है, तो नहीं मन माइंड में शायरी भेज देंगे। इसलिए शायरी भेजा है। अमिताभ क्रेडिट बच्चन लो। जी वो, हाँ, कैटरीना कैफ और अमिताभ बच्चन जी का फेस है। कैटरीना कैफ देख रही है और अमिताभ बच्चन जी बोल रहे हैं,
बहुत अच्छी शायरी है, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू मैम, थैंक यू। बहुत सो स्वीट। आप शायरी सुनाना चाहते हो हमको, रोमांटिक प्राइवेट सी? वो शायरी क्या है, मैं ग्रुप में भेज दूंगी किसी को, प्रिया मैम को नहीं तो भेज दूंगी, वो शेयर कर देंगे। ठीक है जी, वेरी गुड। Thank- भगवान आपका प्यार बनाए रखे। लॉट्स ऑफ हाँ, टुगेदरनेस एंड soon you will be together. थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। And John, sir, you had texted me that message in the morning. I saw it in the morning. And so it was his 33rd wedding anniversary. So wish you both, you and your wife, a very, very happy, healthy years of togetherness, full of joy, love, and laughter in your family. And enjoy your life to the fullest, your way. So yeah, you wanted blessings. Okay. Yes, Lata ji, आप बोलिए finally. गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। दिस इज माय फर्स्ट शेयरिंग। थोड़ा सा काफी टाइम से मैं सोच रही थी शेयर करूं, पर समहाउ मैं कर नहीं पाती थी। मैं आपको बताना चाहती हूँ मैडम, इस ग्रुप में आने से पहले मैं बहुत चीजें से स्ट्रगल कर रही थी। सबसे मेन मेरी जो प्रॉब्लम थी नेगेटिविटी। मैं बताना चाहती हूँ जिस दिन मैंने आपको पहली बार सुना, वो नेगेटिविटी मेरी उसी समय खत्म हो गई। मुझे उस समय समझ नहीं आया कैसा हुआ, लेकिन बाद में जब मैं सारी प्रैक्टिसेस करने लगी तब मुझे पता चला कि शायद उस समय आपने मुझ पे मैजिक डस्ट किया था, क्योंकि उस नेगेटिविटी से मैं इतनी परेशान थी। मेरे फैमिली मेंबर्स सब परेशान थे, सब ने इतनी कोशिशें करी। मैं बुद्धा पढ़ती थी, हर चीज पढ़ती थी, लेकिन थोड़े टाइम तक मैं उस जोन में रहती थी, पॉजिटिव जोन में, लेकिन बैक टू द स्क्वायर वन हो जाती थी। थोड़े टाइम बाद मैं वो कंटिन्यू नहीं कर पाती थी। लेकिन फर्स्ट टाइम आपको देखा तो मेरी वो प्रॉब्लम बिल्कुल सॉल्व हो गई। उसके बाद वो सबसे बड़ी मेरी विक्ट्री थी। सेकंड, मुझे इंसोम्निया की प्रॉब्लम थी बहुत सालों से। इवन मैंने डॉक्टर को भी कंसल्ट किया था, उन्होंने मेडिसिन दी थी मुझे। थोड़े टाइम मैंने मेडिसिन ली थी, लेकिन मुझे लगा जो मेरे को नींद आ रही है वो नेचुरल नहीं है, तो वो मैंने बंद कर दी। उसके बाद मैं रोज वाटर टेक्निक करती थी, और सोते समय अपने मैजिक रॉक को अपने पिलो के नीचे रखकर साउंड स्लीप के लिए रोज कहती थी। तो मैंने ये अक्टूबर 2022 को ये ग्रुप ज्वाइन किया था। तो मार्च 23 को मेरे को तब से मुझे इतनी अच्छी नींद आने लग गई है, मैं बिलीव नहीं कर सकती। इवन मेरे पूरी फैमिली इतनी सरप्राइज्ड है कि जो बीमारी इसकी आज तक सॉल्व नहीं हुई है, सडनली कैसे ठीक हो गई है। सब अब हमारे घर में जर्नल लिखना शुरू कर दिया है सबने, क्योंकि मुझ में इतने चेंजेस देखकर सब सोचने लग गए कि हाँ, ये इतनी बड़ी विक्ट्री इसको मिली है, कुछ ना कुछ तो है। मेरे साथ रोज मैजिक होता है मैडम, मैं बता नहीं पाती। थोड़ा थोड़ा मतलब ओपन अप होने में मुझे बहुत थोड़ी तकलीफ होती है। धीरे धीरे मैं ओपन अप होंगी। और सबसे बड़ी विक्ट्री, मैं जॉब के लिए ट्राई कर रही थी काफी टाइम से, तो मुझे वो जॉब भी नहीं मिल रही थी। बिकॉज ऑफ रितु, बिकॉज ऑफ आपके वजह से, आप जैसे मेंटोर मुझे मिला, तो मेरे अंदर इतनी सारी चेंजेस आए। आई एम एबल टू ट्रांसफॉर्म माई सेल्फ। मैं आपको बहुत बहुत थैंक यू करना चाहती हूँ, आपको और माय बेस्ट फ्रेंड रितु को। बिकॉज ऑफ हर आप मुझे मिली। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू मैम, क्योंकि आप नहीं होते ना, आप समझ नहीं सकते। वो नींद में इतने सालों से जिस नींद के लिए तरस रही थी, वो अब मुझे आती है विदाउट एनी मेडिसिन, बस मेरे मैजिक रॉक और वाटर टेक्निक की वजह से। मैं आपको बहुत बहुत थैंक यू करना चाहती हूँ मैडम, क्योंकि आपके वजह से। थैंक यू। आप सबके बिहाफ पे कल वर्षा ने रिप्रेजेंट करके मुझे बहुत बड़ा गिफ्ट दिया लाइफ का। मैं कोशिश करती हूँ। एंड लता जी, गॉड ब्लेस यू विद सो मच हैप्पीनेस, गुड हेल्थ, प्रोस्पेरिटी, और आपको जो जिंदगी में चाहिए आप हासिल कर लोगे, बिकॉज ये सिंसियरिटी के कारण इस तरह की विक्ट्रीज आती हैं जिंदगी में। तो आपने अपने क्रिएटर को अलाइव रखा हुआ है और आप चीजें जिंदगी से बटोरते जा रहे हो और देते जा रहे हो। सो इट्स योर जॉब, that is you have done that effort, so congratulations। and आप अभी तो डॉल जैसे लग रहे थे कर्म ही मैम। बाकी है। मैंने ये मैम तो आप डॉल जैसे लग रहे थे उसमें, इतने प्यारे छोटी सी मैं कोशिश करती हूँ उसको लाने का। ऋतु है ना, एक सेकेंड वेट करना तुम, ठीक है? मैं कोशिश करती हूँ स्क्रीन शेयर अगर मैं कर सकती हूँ तो, अगर किसी तरह से मुझे वो व्हाट्सएप का ये करना पड़ेगा। मैम पहले वो डाउनलोड करना पड़ेगा व्हाट्सएप से और फिर उसको हाँ, शेयर मैं करना। कोशिश करती हूँ अगर वो आता है तो। दिख गया स्क्रीन पे? जी हाँ बहुत प्यारे लग रहे हो आप। देखो। यस मैम, दिख गया, छोटू सा दिख रहा है पर अभी प्ले नहीं हो रहा।
प्ले नहीं हो रहा? नहीं मैम, स्टक है। मतलब कि इमेज दिख रही है, जो फर्स्ट इमेज थी ना आपकी, हाँ वो दिख रही है, प्ले नहीं हो रहा मैम। आई डोंट नो कैसे चल रहा है। मैं तुम लोग मैम को अब ग्रुप हुआ में है, डाला। मैम अब हो रहा है, मैम अब हो रहा है, नाउ पर इट्स वर्किंग। आवाज, अच्छा, मैम पर आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही? आ रही है। आ रही है आ रही आवाज मैम, मैम, आप थोड़ी थोड़ा थोड़ी सा अब आ लाउड रही है। कर हाँ जी मैम, दीजिए सब हम उसको। सब म्यूट हो जाते हैं। ये कहाँ थे आप मैम इसमें? पौंडीचेरी में ये सब ड्रामा चल रहा है। हरकत। बहुत क्यूट। बिल्कुल कॉलेज गर्ल जैसे। న్యూస్ పేపర్తో మాట్లాడేది ఎవరి मैम आप बोलते जाओ व्हाट दे आर सेइंग। अरे ये टी शर्ट इन्होंने इतने सारे लोगों के लिए प्रिंट कराई जिसपे मेरी फोटो बनी हुई है, मैं अभी ग्रुप में भेजती हूँ। Go on describing so we get more feeling. दिस इज इट। ये वाली मेरे लिए टी शर्ट बनवाई थी जिसपे कोच लिखा हुआ है, मैं आपको वो भेजती हूँ अभी ग्रुप पे। ये मेरी फोटो है इस पे। That is फैन वाली so फोटो है ना cute. मैम? आप सब फोटो भेज देना मैम। हाँ, so these people are wearing the same t-shirt with my photo on them और पीछे लिखा हुआ है SAL rocks. That is so cool. Oh God, Yes. I have to So show you rock. that t-shirt. मैं भी And आपको all in jeans मैम, it is so symmetry. कितना अच्छा लग Yeah. रहा है। एसएल ग्रुप के लिए मैं रोज लिखती हूँ, देखो वही हो रहा है। Wow, My it has God, ended. it was such a moment. I can't tell you, like amazing. And I'll share with you. इन्होंने क्या किया था that मुझे कुछ नहीं पता, ये सब नौटंकी चल रही थी। शाम को जब हम पूरी साइट सीइंग, सुबह हम गए थे ऑरविल ट्रिप पे मेडिटेशन के लिए, जो ऑरविल आश्रम है यहाँ पे, दूर है थोड़ा सा पौंडीचेरी से, आधा पौना 1 घंटा लगता है जाने में। तो वहां से आए, उसके बाद हम 2-3 जगह हमको और कवर करनी थी, खूब मजे किए, वो सब करके हम वापस आए। और फिर मैंने कहा कि क्योंकि सुबह जल्दी सेशन था मेरा और फिर रात में हम ऐसे ही सो रहे 2 बजे 3 बजे, तो फिर नींद पूरी नहीं हुई थी, तो मैंने कहा कि मुझे बस ना, देन वी थॉट दैट वील गो टू द नाइट क्लब, आई लाइक वो था दैट वी वांटेड टू गो टू द बीच क्लब एंड काइंड ऑफ रियली पार्टी एंड यू नो हैव सम फन एंड so I told them that just give me like 45 minutes or something, मुझे एक ना पावर नैप लेना है। मैं रूम में आ गई, मैंने कहा मुझे बस अपना ब्लैंकेट ऊपर करके एसी चला के अंधेरा करके आधा पौना घंटा आप मुझे सोने दो, उसके बाद रात में मुझे कितना भी जगा लेना। तो दे डिड दैट, आई केम एंड स्लेप्ट। उसके बाद इन्होंने रूफ टॉप पे ये सारी नौटंकी चल रही थी, मुझे कुछ नहीं पता था, ठीक है, बिकॉज हम 2 रूम्स में हैं
और मेरे रूम में मैं एंड डॉक्टर प्रीति हैं, और साथ वाले रूम में इज वर्षा, पूनम एंड दर्शिनी। तो ये चेन्नई के हैं तीनों हमारे ग्रुप में, हम सबको पता ही है ना। सो इन लोगों ने पूरा प्लान करके रखा था, और पता नहीं कब से टी शर्ट्स बनवाई थी व्हाइट कलर की। उस टी शर्ट पे आगे इंस्टाग्राम से मेरी एक फोटो है जो मैं आपको अभी भिजवाऊंगी। आई थिंक समबडी कैन पुट इट, जो लोग भी दिल्ली ग्रुप में हैं, दिल्ली ग्रुप में मैंने डाला था तब, तो उसमें से आप देखो ग्रुप में अभी सुपर एक्सेलरेटेड लिविंग में, कि वो टी शर्ट जिसमें मेरी फोटो बनी हुई है, वो आगे से सर्कल वो था, और पीछे टी शर्ट पे लिखा हुआ था SAL रॉक्स, ठीक है। और सबने वो टी शर्ट पहन ली थी, एंड ये सब चल रहा था ऊपर, कुछ 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 मुझे कुछ नहीं पता था। मुझे सडनली प्रीति कहती है, दीप्ति उठना उठना, और मैं इतनी गहरी नींद में सोई थी ना, बिकॉज वो ये कि पूरे दिन चलते चलते चलते, और ऑरविल में बहुत चलना पड़ता है, कुछ 3-4 किलोमीटर की वॉक है ओनली टू रीच द मैत्री मंदिर। सो वो सब करके, और यहाँ टेम्परेचर भी थोड़ा 30-35 के आसपास का चल रहा है। तो आके सो मैं बिल्कुल ऐसे उठी, मुझे होश ही नहीं था कि वेरे माए लाइक दो कहती है कि दीप्ति उठ एक बार, तो मैंने कहा हाँ बोलो। कहती है चल ना बाहर चलते हैं थोड़ी देर, बस तू आ जा, बस तू आ जा, चल उठ जा, बिकॉज जाना तो पड़ेगा ही, तैयार भी होना है, और फिर हमको बीच क्लब भी जाना है ये। तो फिर उसके बाद मैं ऐसे ही उठ के गई, तो कहती है 1 सेकंड ऊपर चल। मैंने कहा ऊपर क्यों ले जा रही है? रूफ टॉप पे, होटल के रूफ टॉप पे ये सारा मतलब ये रास्ता बनाया हुआ था, पाथवे, जिसके बीच में से चल के वहां पे केक रखा हुआ था ब्यूटीफुल, और ये सब टी शर्ट पहने हुए थे, और मैंने एकदम से नोटिस नहीं किया क्योंकि मैं अभी भी मतलब 70% नींद में थी, जैसे स्लीप वॉक करता है ना, मैं वो करती करती गई थी। तो मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था ये हुआ क्या। उसके 2-3 घंटे के बाद मैंने कहा मुझे पिंच करके बताओ ये सब रियल है, मतलब ऐसे कोई सपने की तरह नहीं है। बिकॉज वहां इन सब ने टी शर्ट, मैंने उन टी शर्ट के ऊपर ये अपनी फोटो देखी भी नहीं थी, और पीछे SAL रॉक्स लिखा हुआ था, और मेरी टी शर्ट पे मेरी टी शर्ट पे मेरी वाली फोटो नहीं थी, मेरी टी शर्ट इन्होंने कुछ और बनाई थी जिसपे लिखा हुआ था कोच, और कोच का मतलब फ्रेंच में, और सब कुछ, और ये करके, और वो गाने वाने सब बजा के स्पीकर्स तैयार रखे हुए थे, और वहां पे पूरे होटल से कह के फ्लावर अरेंजमेंट कराया था वो सारा। एंड there's another 2-3 वीडियोस और है where they gifted me something, and like it was like I don't know what kind of a flavor was it, what was happening in my life। उसके बाद जब हम बीच क्लब में गए, उसके बाद मैंने वो व्हाट्सएप को खोल के बार बार वो वीडियो देखा, अपने आप को यकीन दिलाने के लिए कि वो सपना नहीं था और वो हकीकत था। और इतनी मेहनत इन लोगों ने की थी ना उस इवेंट को ऑर्गेनाइज करने के लिए, पता नहीं कितने टाइम से ये सब चल रहा होगा, बिकॉज वो टी शर्ट्स प्रिंट कराना एक एक साइज की। अब हमारे साथ हमारी ट्रिप पे आरती गुप्ता भी आने वाली थी, आरती के मतलब फ्लाइट टिकट्स भी हुए हुए थे, लास्ट मोमेंट पे कुछ ऐसा हो गया कि वो नहीं आ पाई। तो वो आरती के भी साइज की उसकी फोटो वोटो गेज करके उसका साइज कभी मिले नहीं है आरती और वो लोग, ठीक है। उसके लिए प्रीति प्रीति नंदा मेरे साथ आई हुई है दिल्ली से, तो डॉक्टर प्रीति, तो उनकी साइज इनको पता नहीं कैसे इन लोगों ने अपने आप को ऑर्गेनाइज किया, बैंग ऑन साइज, न लूज न टाइट, सबकी टी शर्ट बनवाई हुई। आरती है नहीं, बट आरती आपकी टी शर्ट मेरे पास रखी हुई है। तो Yes, वो सब ma'am. करके इस तरह से ऑर्गेनाइज करके, मतलब मैं बता नहीं सकती। और उसमें तो इसमें म्यूजिक और आवाज कम आ रही है, उसमें इतनी लार्जर देन लाइफ सब कुछ हो रहा था, ढिंचैक वाला, एंड लाइट ऐसे बनाई हुई, और सब कुछ जैसे ना सपना होता है उस तरीके से किया हुआ। ये मैंने 555 एफर्मेशन, मैं इन लोग को यही बता रही थी कि आने के पहले मैंने 555 एफर्मेशन की थी, जिसमें मैंने डिक्लेरेशन, मैं किस तरह 555 करती हूँ कि आप 555 में आपको सिर्फ एक लाइन लिखनी होती है, ठीक है। तो मैं ऊपर एक पैराग्राफ में डिक्लेरेशन लिख देती हूँ, that dear universe, I declare that my Pondicherry and Chennai trip was the best ever trip of my life. It's full of magics and miracles, and from this date to this date, and everything is being offered to me by the universe for the best, and this and that। ये पैराग्राफ लिख के फिर मैंने एक लाइन लिखी थी, thank you universe that my Pondicherry trip was full of magics and miracles, and this was larger than magics and miracles। हम जब से आए हैं, मतलब हमको फर्स्ट डे जब आना था, तो देन ऑल्सो वी वेंट नाइट क्लबिंग, पौंडीचेरी इज अ पार्टी प्लेस। So it's a French town. I mean, people who've been here, it's totally a French colony. French cuisine है, French restaurant है, सब कुछ वैसा। So nice party place. So then evening में जब हमको पहले दिन जाना था, तो उसमें हर नाइट क्लब में, जो अच्छे नाइट क्लब्स होते हैं उसमें कवर चार्जेस होते हैं, we all know that, है ना। कई बार रिडीमेबल होते हैं, कई बार नहीं होते हैं। तो वो
हम जब गए तो हमको हमारे होटल के फ्रंट ऑफिस ने बोल दिया, मतलब सारे रिजर्वेशन, यहाँ पे एक इंसान है विक्की नाम का, जो हम ही इज मेकिंग अ लाइफ वेरी इजी, बाय टेलिंग अस गो देयर एंड नाउ एट दिस टाइम यू गो हियर एंड व्हाटएवर. सो ही टोल्ड अस दैट कवर चार्जेस होते हैं. मैं उनको बोल के आप लोगों के लिए 2,000 रुपए करवा दूंगा और वो रिडीमेबल हो जाएंगे, ये हो जाएंगे. एंड देन व्हेन वी वेंट देयर, कोई कवर चार्जेस हमसे नहीं लिए. हमें पता नहीं किसी से लिए नहीं लिए, हाउ में हम पढ़ते नहीं है, क्या रूल है क्या नहीं है. हमको सडनली जाने के पहले फोन आया कि आपके लिए कोई कवर चार्जेस नहीं है. ठीक है, इस तरह से. और जहां हम जाते हैं वहां पे कुछ ना कुछ, मतलब कल जब हम ऑरविल में थे तो ऑब्वियसली वो आश्रम बहुत ही बड़ा है. पीपल हु हैव बीन देयर ऑरविल में, तो बहुत ज्यादा आपको वॉक करना पड़ता है, बेइंतहा वॉक करना पड़ता है, और मौसम बहुत प्लेजेंट है यहाँ पे. तो फिर जाते जाते ही हमारी हवा टाइट हो गई थी बाय द टाइम वी रीच देयर. एंड देन लाइक ऑन द वे बैक, व्हेन वी केम बैक, imagine out of the blue inside the ashram one auto came and we told him that हमारी car is parked in the car parking. He said come I'll drop you. And the moment हम वो मैत्री मंदिर से बाहर थोड़ा सा गए and we saw that there was an auto and he took us all that 4-5 kilometers, वो हमको कार पार्किंग तक छोड़ गया. इस तरह हमारे साथ ना जादू की तरह चीजें हो रही हैं. एंड दिस ट्रिप इज सो अमेजिंग. मतलब मैजिक्स एंड मिरेकल्स भी एक छोटा सा वर्ड है. ऐसा लग रहा है कि वही जैसे हमने पढ़ा था ना टेलीसाइकिक में, that God walks before I do wherever I go and opens the pathway for me in the best possible way. So वो जो मेरी पूरी 555 की एक के मैजिक्स एंड मिरेकल्स के बियॉन्ड हो रहा है. सो परसों वैसा वाला दिन था. कल इतना मजा आया. यहाँ पे एक पैराडाइज बीच है जहाँ पे जाके. सो इट वाज लाइक सो अमेजिंग. इतने ज्यादा मजे किए हमने वहां पे. उसके बाद आके और फिर रात को ये हुआ और फिर नाइट क्लब गए. एंड मतलब मैं लिटरली उस बीच क्लब में बोल के आई हूँ, people who want to come here. So it is called Flying Dragons, that night club here. So वहां पे जाके मैं, मतलब मैंने वैसा डीजे, मैं कितना ट्रैवल करती हूँ पूरे टाइम, एंड आई एम like when I'm on vacation then I party hard. Okay, otherwise in Delhi I normally don't, because next day work day hota hai and all that. So ऐसा डीजे मैंने आज तक नहीं देखा है. मैंने बैंकॉक के एक नाइट क्लब में बहुत अच्छा डीजे के लाइक ही वाज अमेजिंग, जो मैं भूली नहीं हूँ. आई थिंक 2019 वाले बैंकॉक में कई बार गई हुई हूँ. तो 2019 वाला जो डीजे था वो मैं भूली नहीं हूँ. एंड देन येस्टरडे दैट डीजे गॉट सरपास बाय समवन इवन बेटर. और मैं जब आ रही थी तो मैंने वर्षा और दर्शनी और पूनम इन सबको यही बोला कि आई रियली प्रे एंड विश दैट इस डीजे को ना, मतलब ये उस मुकाम पे जिंदगी में पहुंचे जहां पे लोगों को जो बिल्कुल डांस नहीं करते ना उनको भी ये नचा दे. इसमें ये कैपेबिलिटी है. इतना अमेजिंग डीजे आप सोच भी नहीं सकते. जिस तरह से उसने पार्टी होल्ड की हुई थी ना, वो एक एक टाइम पे चेंज कर रहा था. एंड इतना ऑब्जर्वेंट कि बीच में बहुत सारे द वाइट्स, द फॉरेनर्स हु हैड कम इन. सो कुछ इंडियंस थे, कुछ बाहर के लोग थे. ऑब्वियसली मिक्स क्राउड होता है यहाँ पे. तो जैसे जैसे फॉरेनर्स आ रहे थे ना, जो वाइट्स आ रहे थे, तो वो अपना सॉन्ग म्यूजिक उनके हिसाब से चेंज कर रहा था. और उसके बाद जब हम हो रहे थे तो वो बीच बीच में कभी पंजाबी लगा रहा था, फिर एकदम से वो इंग्लिश ट्रैक्स लगाने लगता. सो ही वाज गिविंग अस द मिक्स ऑफ द बेस्ट एंड इट वाज सो अमेजिंग दैट कभी हम 2-2.5 घंटा नॉन स्टॉप फ्लोर पे थे. हम सब भूल गए दुनिया में. फिर दिस इज हाउ ब्यूटीफुल इट वाज. एंड यहाँ पे मतलब फिर वर्षा के हस्बैंड ने उनको वो भेजा था कि देयर इज वन आइसक्रीम पार्लर जिसमें अल्कोहल, इट इज अ रम एंड अ विस्की आइसक्रीम. हमने कहा ये कैसा होता है, टेस्ट करने चलते हैं. 12:30 पौने 1 बजे हमको याद आया कि अच्छा हाँ, उन्होंने किसी आइसक्रीम का बार, टोस्ट टिप्सी आइसक्रीम बार, ठीक है, टोस्ट टिप्सी आइसक्रीम बार के पास हम गए वहां पे. एंड देन वी हैड दैट विस्की आइसक्रीम. ऐसा लग रहा था विस्की पी रहे हो, बट वो एक्चुअली आइसक्रीम थी. इट वाज नॉट मेकिंग यू लाइक दैट. So it was, and it was open at that point of time. So it was, मतलब वो क्लोज हो सी रही थी, वहां पे कोई था नहीं. एंड सडनली हम गए, वहां पे लाइट जली, वो इंसान आ गया और उसने हमको आइसक्रीम सर्व की. हमसे 200 रुपए लिया. हमने एक ही स्कूप लिया बिकॉज हमारे पास स्कोप नहीं था कुछ खाने का. बट हम वो एक्सपीरियंस एंड मोमेंट्स, तो मैंने इतने मोमेंट्स यहाँ पे क्रिएट किए हैं, मैं आपको बता नहीं सकती. मतलब जादू की तरह चीजें हो रही है. और अभी हमको और बिंदु आश्रम जाना है 7:30 बजे. तो अब ये वाले, सो वो जो एफर्मेशन 555 प्रैक्टिस जो होती है ना, अगर दिल से हम उसको करते हैं और फिर यूनिवर्स पे सरेंडर कर देते हैं कि यूनिवर्स मुझे शोकेस करो कि मुझे मेरी जिंदगी में इस ट्रिप में चमत्कार कैसे होने, और वो आपके होते जाएंगे. ठीक है, 5 दिन मैंने शिद्दत से वो किया 555 प्रैक्टिस, जो मेरी थर्सडे को खत्म हुई और फ्राइडे मॉर्निंग मेरी फ्लाइट थी. सो दिस इज हाउ इट वाज एंड इट वाज सो अमेजिंग, सो सरियल. मतलब मजा आ गया.
मतलब आज का भी of course there's whole day to it and so there's so much more. So yeah, that is how it is. So this is what I Ma'am, you wanted to share. yourself मैं are a उसमें डाल magic. देती हूँ. हाँ. Ma'am, you yourself are a magic. तो मैजिक्स तो होने ही है आपके साथ. नहीं बट ऐसे ऐसे जादू माय गॉड मतलब इट इज अमेजिंग. मतलब मैं कैसे डिस्क्राइब करूं वो जो फीलिंग्स एंड वो जो मोमेंट्स हो रहे हैं ना कि ये कैसे हो गया कि आप जैसे ही मतलब वो मेडिटेशन सेंटर से बाहर आए हो और आपको ऑटो मिल जाता है आश्रम के अंदर जो आपको 4-5 किलोमीटर बाहर लेके चला जाता है. जब आपको पानी चाहिए तो पानी आ जाता है. हमको रेस्टोरेंट चाहिए था तो मैंने बोला था कि देख ना मतलब मुझे एम्बियंस बहुत मैटर करता है. आई एम नॉट अ वेरी फूड पर्सन. मतलब मुझे वो 4 प्रॉन्स मिल जाएंगे ना वही मेरा खाना होता है. तो मुझे वो कुछ और उसके अलावा नहीं चाहिए होता. आई वांटेड अ गुड एम्बियंस. द प्लेस वेयर आई सिट एंड हैव माय टी एंड कॉफी एंड फूड दैट मैटर्स टू मी. ओके, मोर देन द फूड दैट आई हैव. सो तो वो ऐसी जगह पे गए. मैं आपको वो भी फोटो भेजूंगी कि कैसी जगह पे गए थे. माय गॉड, वो हम पहले यही सोच रहे थे कि अच्छा हम अरुण में यहाँ लंच करें, यहाँ लंच करें. हमने कहा अरे मतलब क्यों दिमाग लगाना, और फिर जस्ट सरेंडर कर दिया. और मैं वहां की आपको फोटो भिजवाऊंगी अभी कि कितना सुंदर रेस्टोरेंट. जस्ट लुक एट दैट एम्बियंस ऑफ इट एंड आई विल गिव यू द नेम ऑफ द प्लेस फॉर एनीवन हु वांट्स टू कम टू Pondicherry. This place is beautiful. Do come here. If you don't do this trip, with your group of friends and family, but come here together. If you're just 2 of you coming cozy, this is not that kind of a place. You have to party hard. You have to go to the beach and you have to be all out, that kind of a place. So come with your friends and, gather 3-4 couples and someone. You have to take a flight. People, wherever they are, they have to come to Chennai first. वहां से 100 किलोमीटर दूर है ये. So, and then enjoy the beauty of it and do all whatever your practices before coming here. And you will see that. And Chennai की flight is hardly 2 घंटा. अगर दिल्ली से कोई आ रहा है तो it is like it's not much. और वहां से बहुत आराम से you can come here. So it is like really amazing and beautiful. Every moment is like wow. It is like that. So I'll send you some of the pictures right now. That restaurant I'll send you. That restaurant was called Ecstasy. Very funny name, but yeah, whatever. So ecstasy as in supreme happiness. So it did give us that. So I'll share the picture of that with you. The t-shirt जो आगे की तरफ प्रिंट है, जो मेरी वाली t-shirt थी उसका, और ये जो वीडियोस 2 थे उनके, I'll share that with you. और मैं बिल्कुल नींद में हूँ उसमें. और इन्होंने मुझे बोला था, तो मैं कपड़े इतने ज्यादा पहनती नहीं हूँ जब मैं गरम. आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ वेयरिंग टू मेनी क्लोथ्स. आई एम इन अ सिंपल ड्रेस. मेरी ड्रेस इज नीज या नीज. मैं यहाँ पे शॉर्ट्स और बनियान में ही रहती हूँ यहाँ पे पौंडीचेरी में. अभी इन्होंने मुझे ये भी कहा था कि जीन्स पहन के आना है. ठीक है. और सबने, क्योंकि इन्होंने पहले ही वो किया हुआ था कि, और पहले ही लिख दिया था हमारी ग्रुप में, जो रॉकिंग ट्रिप टू पौंडीचेरी का एक व्हाट्सएप ग्रुप बना था उसमें लिख रहा हुआ था कि ब्लू डेनिम सबको लेके आना है. अब मैं दिल्ली की ठंडी से आई हुई यहाँ पे गर्म जगह पे, तो मैंने कहा कि ठीक है, मैं जो ब्लू जीन्स मैं पहन के ही वो आ जाऊंगी यहाँ से और वो ही मैं पहन लूंगी. तो कहते, मैंने कहा तुमको रील बनानी है इसलिए ब्लू जीन्स? तो कहती है हाँ रील बनानी है हमको. मुझे नहीं पता था ये सब ड्रामा पहले से डिजाइन था पूरा. तो वो मैं दिल्ली से ही जब आई थी तो मैंने ब्लू डेनिम्स पहनी हुई थी. तो फिर जब प्रीति ने मुझे जबरदस्ती चेंज कराया नींद में, कहती है ब्लू जीन्स पहन के आ जाओ, उनको वो रील वील का क्या काम था ना वो अभी करके निपटा देते हैं. And then I went and I changed. I took out my shorts and wore my jeans. And जो जिसमें आपने ये वाला वीडियो देखा, तो ये सारा किस तरह से इतनी स्लीजली सब हो रहा था, मुझे कोई क्यों भी नहीं था. मतलब मैं जब नैप लेने के लिए आई थी तो मैं वर्षा की रूम में, मैं वहीं पे बैठी रहती हूँ, जैसे अभी भी मैं वहीं जाऊंगी वापस. तो वहां पे बैठी हुई थी एंड मैंने केम, कोई ऐसा नहीं था. वो लोग भी सब आराम से रेस्ट कर रहे थे, कुछ कर रहे थे. तो मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि रूफटॉप पे ये सब चल रहा है. एंड देन हाउ दे गॉट अरेंज. ये जब सब हो गया तो कहते बस इसी के लिए वो था कि सब अच्छे से हो जाए, बस सब अच्छे से हो जाए. It was like that and it was so beautiful. I'm so touched and thank you Varsha, Poonam and Darshini for making this trip so special. मैं हमेशा ये बोलती हूँ ना कि वर्षा, दैट चेन्नई में मेरा कोई रिश्तेदार दूर दूर तक का कोई नहीं रहता था. मैं यहाँ पे आती भी नहीं थी और चेन्नई इज बिकम लाइक माई मायका. नॉट जस्ट दैट, मतलब वर्षा हम सब के लिए 3 दिन का खाना और स्नैक्स बना के लेके आई है. कैन यू बिलीव इट? कल भी जो बीच बीच में स्नैक की तरह इडली खा रहे हैं, वो उस पे पोड़ी इडली जो होती है मसाला डाल के, जो उनका रेड वाला, वो जब भी भूख लगती है तो आई वुड ईट दैट बाइट. जब भी कुछ होता है आई ईट दैट. इतना सारा खाना अभी भी रखा हुआ है और वो खाना पैक करके दे रही है वापस आज दिल्ली ले जाने के लिए रात को. So it is that beautiful. So yeah, this looks so much like a Maika to me now, Chennai. So it is like beautiful.
एंड सुदेश एंड रितु, अगर आपकी शेयरिंग हम कर ले तो चलेगा? Yes, ma'am. Yes, ma'am. हाँ? Yes, ma'am. Just got to go because आज का टाइम लिमिटेड है और एक और शहर जाना है। ठीक है, यहाँ से पौंडीचेरी से कहीं और भी, किसी और Thank बीच, you. मैम अभी ठीक तो है? हम खुद ही सब पौंडीचेरी में हैं सब लोग। है ना? Yes. अरे मैं अभी भेजती हूँ ना तुम Ma'am, लोगों we'll have को। another trip with more members. Yeah, Yeah, you should please do. actually do We'll have a that. Yeah, rocking it is trip. so much fun to travel together. Yeah. You know, जब उस नाइट क्लब में हम डांस कर रहे थे, जब हम गए तो वो बेचारे डीजे भी देख रहा था कि हमारी रौनक तो मेरी चले जाए, Please, Varsha, do that. क्योंकि हमसे Yes, दारू please. वगैरह आइसक्रीम खाने जानी थी। Yeah. Tell me your convenient month, and we'll really freak out here. Ma'am Yeah, came with all absolutely. loaded coats and everything, and then she was with Yeah. sleeveless and shorts. And then after Yeah, that, just Yeah, to- keep oh, your beautiful. shorts, and I don't go to cold places to holiday ever. I don't want to carry Are you so going to many clothes Mahabalipuram? and baggages. Yeah, we are going on our way back now after we finish Pondicherry. great. Enjoy. No, but then they are going to another city, na, Varsha? That's Mahabalipuram is in Chennai. Ah, it's like whatever, but it's another Yeah, it's in the city. middle. हाँ, Yeah, but- it's in the No, outskirts अभी of हम the औरबिंदो city. आश्रम जा रहे हैं, हम Yeah. वहां से भी हम आपको पूरे दर्शन करा देंगे ताकि आपको मैनिफेस्टेशन के लिए इजी हो जाएगा ना, जब जगह देखते हैं। And So so we'll- cute, she tells about that bracelet. No, this is the Harsha. She's trying to- What? Ma'am, the brace. Oh, I'm sorry. I thought the mic was off. The bracelet, ma'am, how you were trying to identify the names. yeah. That it was Varsha, it was Darshini, but it was not Varsha and I think Darshini. it's Varsha, Darshini, and this. So you see this? There are Was 3 Sachi mein Neem mein thi, alphabets. ma'am. Yeah, they made me wear Yeah. this, and there are 3 alphabets. This is Varsha, Darshini, and P written. इस पे लिखा हुआ है SAL. Oh God, they're having a rocking trip, I swear. Oh, So- her imagine. This was so beautiful. Okay, it's Varsha, Darshini, and Poonam. Okay. She can't even see the alphabet, but she's like, oh, this is Varsha, Darshini. I was totally dazed and dozed off. You know, I don't know. Ask her how many times I was telling that, can you pinch me? I want to, I want to know if it is happening for real. मुझे वैसे ही लग रहा था, मैं इतनी नींद में थी जब मैं ऊपर गई थी. It was Yes. like a सपना. I don't remember going, changing my shorts and wearing my jeans and coming out. I really don't remember that. I don't know when I did it. And when we sent her back to the room, she's saying, I don't want to sleep now. I want to go now. I said, no, go take a nap. Go take a nap. And the best thing, when she came to our room, she correctly touched the bag in which all the surprises were there. And she's saying, I'm taking this bag. And I just pulled it from her hand. And I said, no, I'm not taking this bag. Actually, I needed a bag to carry to Orville because बहुत सारा सामान हो जाता है ना, स्टोल, हमने सोचा उसमें ये भी डालेंगे, थोड़ा पानी डालेंगे, थोड़ा खाना डालेंगे, मैंने कहा एक बैग ये छोटा सा रखा हुआ है, तो वर्षा आई और झपटा मार के मुझे रात में पता लगा कि उसमें ये सब सामान रखा हुआ था and they had held it as a was surprise. open. All our things were getting ready, and she said, and I just pulled it, and I hugged the bag. I said, I'm not giving this bag. No. She was like, इसको क्या हो गया? पागल हो गया? ऐसे क्यों behave कर रही है? So it was Crazy. fun. I'll send you the pictures right now, ठीक है? Please, चलो. please. Thank you so much and bye bye. Thank and you. I'm Sudesh Sikka. I mean like कल पक्का. Thank you, ma'am. Thank you. Varsha Thank you, ji. ma'am. Thank you, ma'am. everyone. Thank you so much. Bye. Thank you Have so a much. beautiful magical Sunday.